या किसी ने दिन में कुछ रिसर्च किया क्या इसके ऊपर? मुझे ना मैं सब बाकी टॉपिक्स पे था। हाँ, तो thermal and non-thermal emission from sun. So it is written here dashed जो line है that is non-thermal spectrum, this one dash line up to here, and dotted line that is thermal spectrum. So this is thermal, and this I am assuming this is the power law spectrum. I am assuming, I am not 100% sure, but it should be somewhere like this. So, power law spectrum is denoted by straight lines, so maybe that's a power law spectrum, this one, the continuous line. Anyone having any guesses, any idea, any explanation? Okay, we go ahead. Optical sun. H alpha filter allows the camera to see only red light, 56.3 nanometers. Where light photo of the photosphere of sun, it has temperature of 5700 degrees Celsius. ये फोटो हम लोग भी निकालते हैं नॉर्मली टेलीस्कोप से डायरेक्टली बाय आई मीन ऑब्वियसली आगे सोलर फिल्टर के साथ। हाँ। आई पीस से हम लोग कैमरा लगा के निकालते हैं, मतलब मोबाइल का कैमरा. एच अल्फा फिल्टर वी हैव नॉट सीन इट एज ऑफ नाउ. कैल्शियम के फिल्टर allows the camera to see only blue light of 393.4 nanometers. Okay. H alpha and calcium के color of sunlight come from a layer above the sun's photosphere called chromosphere. Okay. To get a complete picture of the universe, we need to see it in all of its light using each part of electromagnetic spectrum. Yes. So IR picture. IR picture shows dark regions that are caused by absorption of the infrared light. Okay. IR light is absorbed by the gas in the sun's atmosphere. So the darker feature shows where the gas is denser. This one, these ones. If there are filaments on the sun or groups near active regions, they typically show up dark IR. The coronal holes in the north and the south poles are slightly brighter than the rest of solar disk. यहाँ पे and यहाँ पे this. IR में भी हमने अभी तक नहीं देखा है, right? नहीं। So let's hope for the best कि ये साल हम और कुछ कर पाए. UV sun. The 30.4 nanometer image shows a portion of the chromosphere in which we can sometimes see large prominences rising high above the surface of the sun. यहाँ पे slightly I guess. वो सबने एनिमेशन देखा रहेगा, वो प्लाज्मा इजेक्ट होता है उसके पहले हाँ वाला हाँ हाँ. वैसा। The 19.5 nanometer image shows the lower part of the corona. Okay, most of the 19.5 nanometer light comes from active regions where we can sometimes see loops. यहाँ पे जो loops दिख रहे हैं, this with that 19.5 nanometer light. At the north and south poles of the sun, less UV light is emitted. These regions are coronal holes. Okay. अब इसमें दिख रहा है ग्रीन वाले में, देखो ना थोड़ा हाँ, सा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे. इसमें नहीं समझ में आ रहा है इतना, फिर भी समझ में आ रहा है. सी ये पोर्शन डिफरेंस इन द शेडिंग, यहाँ पे तो क्लियरली विजिबल है. सो लेट्स गो अहेड. अरे बाप रे, कोई और आया क्या अभी? यस, विशाल हियर. ओके, यूवी सन. एक्सरे सन. Surface temperature is only at about 5700 Kelvin, which is far too cold to give off X-ray emissions. Yes, the X-rays are soft thermal emissions observed in the corona. Corona is the outer atmosphere of the sun, right? The atmosphere of the corona is 1 to 2 million degrees. Continuous input of heat required to the corona is supplied by reconnection processes in the strong and rapidly changing magnetic fields of the sun. Now, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन का फोटो अगर किसी ने देखा है, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ फिर से. कल दिखाया था बट वापस से आज भी दिखा देता हूँ मैं, जस्ट टू गिव बेसिक आइडिया. इमेज इज नॉट क्लियर बाय एनी मीन्स, बट ठीक है. सो ऐसे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन. आई मीन not having only two poles but many poles and flipping inside the sun, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ.
different direction होते हैं उसके magnetic fields के in the sun, and multiple magnetic fields are there. So we are not fully aware of the entire magnetic structure of the sun itself. If you Google, I can Google that also. Magnetic field. क्या है रे, मैं क्यों स्पेलिंग कर रहा हूँ? कर दो, वो गूगल इतना समझ जाएगा. नहीं, मैं क्यों लेकिन ये कर रहा हूँ. सी वही इमेज आया है. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द magnetic field of sun. It is very very difficult. Difficult. Let's go. Radio sun. The sun emits weak radio waves of high frequency through thermal processes, but a strong emission is observed at lower frequencies due to synchrotron radiation, which derives from the movement of high speed electrons around the magnetic field. Synchrotron radiation याद है किसी को? कल ही हुआ है अपना बेसिक. इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, लाइक अगर वो वाला, राइट. हाँ, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिवॉल्व हो रहा है, मतलब स्पाइरल हो रहा है. तो वो जो एमिशन होगा, आई मीन वो जो इलेक्ट्रॉन होगा विच इज स्पाइरलिंग अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन इज गिविंग आउट द एक्स बोलते हैं सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन. एनीबॉडी रिमेंबर्स दिस और नॉट? या उसका बस वो फॉर्मूला याद है, वेयर द सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स. नहीं, फॉर्मूला तो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए. व्हाट इज सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन वापस करेंगे थोड़ी देर बाद, ओके, बिकॉज आज यहाँ पे पीपीटी में ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ चीज़ है नहीं. सो लेट्स गो. रेडियो में रेडियो वेव्स, अगर इफ़ यू टेक द रेडियो वेव्स, अभी सिंक्रोन नहीं होता है, ठीक है. रेडियो वेव्स में लो तो सन विल लुक समथिंग लुक लाइक दिस. ओके, वेव बैंड, वेवलेंथ एंड एनर्जी, टेम्परेचर है. व्हाट कैन बी स्टडी? सो गामा रेज, इफ यू ऑब्जर्व ओनली गामा रेज, उनका एनर्जी है 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. टेम्परेचर इज लेस देन 10 to 10 ए ग्रेटर देन 10 raised to ग्रेटर है ना. greater than 10 raised to 8 Kelvin. Yeah, sorry, greater than 10 raised to 8 Kelvin. Kelvin to centimeter, Kelvin to सेल्सियस yes, फॉर्मूला पता है ना सबको, 273. प्लस 273. यस, बट डजंट मैटर यार, 273 से क्या होने वाला है 10 हाँ रेज़ टू 8 एग्जैक्टली, को. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट जस्ट आई एम आस्किंग कि पता है ना सबको. ओके. सेल्सियस से केल्विन में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो प्लस 273 करना पड़ता है, दैट्स इट. हाँ, इफ़ यू टेक गामा रेज ओनली, गामा रेज का अगर स्टडी करोगे तो व्हाट कैन यू स्टडी? द अक्रेशन डिस्क, दिखते हैं गामा रेज में ऑब्वियसली. नाउ नेक्स्ट, एक्स रेज. इफ यू आर पर्टिकुलरली कंसिडर्ड अबाउट एक्स रे वेव बैंड, तो उसका एनर्जी है 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू 150. ये वी क्या है? एनीबॉडी नोज दिस? टाइपो एरर. हाँ, टाइपो है, टाइपो है मतलब सीरियसली? टाइप एरर. यस यस, हाँ सीरियस, यस. अच्छा, 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, टेम्परेचर इज अबाउट टू 10 raised to 6 to 10 raised to 8 Kelvin. हॉट गैस इन क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, स्टेलर कोरोना, एक्रेशन डिस्क, ये these things which can be studied if you consider the X-ray waveguide only. If you consider UVs 900 to 3000 angstroms. एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन किसी को आता है क्या? सॉरी, 10 raised to -10 वही है ना. -10 कन्वर्जन, ठीक है, देखते हैं. मतलब कौन सा कन्वर्जन? इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एंगस्ट्रॉम वगैरह जो भी है. अच्छा वैसा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, एंगस्ट्रॉम इज डिस्टेंस का यूनिट. हाँ, डिस्टेंस है ना. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. बट दोनों को इंटरचेंजेबली लिखते हैं, एज इन हाँ, मतलब because it is लिखने का written स्टाइल here. है. मैडम ने बोला था कुछ लोग को एनर्जी से लिखना पसंद आता है, किसी को वेवलेंथ से लिखना पसंद आता है. हाँ, yes. ओके, वेवलेंथ से लिखा. ओके. Yes, I remember this. गलती से. ये कंफ्यूजन इसीलिए होती है, Yes, I कोई remember स्टैंडर्ड this. फॉलो नहीं करता है. मैडम ने बोला था. yes, I remember this. तो या आगे ना, वेवलेंथ है 900 to 3000 एंगस्ट्रॉम्स.
टेम्परेचर 10⁻⁴ to 10⁻⁶ केल्विन्स. हॉट स्टार्स या वाइट डॉर्फ्स और इंटरस्टेलर गैस का स्टडी कर सकते हैं इफ आर कंसिडरिंग द यूवी लाइट. ऑप्टिकल में ऑफ कोर्स सनलाइट स्टार्स दिखेंगे जो हमने बहुत सारे देखे हुए हैं. 3000 एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ है. 10⁻³ to 10⁻⁴ केल्विन का टेम्परेचर होगा रफली ऑप्टिकल. IR में इफ यू गो दैट इज 7000 एंगस्ट्रॉम टू 100 माइक्रो क्या है माइक्रोमीटर सॉरी माइक्रोमीटर्स या 100 माइक्रोमीटर्स. टेम्परेचर विल बी 10 to 10⁻³ केल्विन. दिस इज किलो केल्विन. कूल होते जा रहा है कूल होते जा रहा है बोल रहा हूँ. टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग ड्रास्टिकली. सी हाँ एक इंफ्रारेड तो डस्ट है, प्लैनेट्स है, ब्राउन डॉर्फ्स है. प्लैनेट्स दिखते हैं पता है ना इंफ्रारेड में. यस इफ यू रिमेंबर दैट डायरेक्ट इमेजिंग, अगर किसी को याद है एक्सोप्लैनेट वाले कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट इमेजिंग करके था. इफ यू टेक द ऑप्टिकल तो उसमें तुमको प्लैनेट दिखेगा नहीं अच्छे से, पर इफ यू टेक द इंफ्रारेड तो उसमें प्लैनेट हल्का सा दिखता है. शुड आई दैट या किसी को याद है? वो 3 प्लैनेट्स दिखते थे वो वाले ना इंफ्रारेड. हाँ वैसे ही करेक्ट. यस लेट मी जस्ट शो किसी को कंफ्यूजन ना हो. स्टार्टिंग में था यस गोइंग अप. See, this is the difference. या ये ले लो. If you take visible photo, visible light, if you consider the visible light of any star and exoplanet, तो यहाँ पे तो planet गायब ही हो गया almost, दिख भी नहीं रहा है here. But if you take same image but in infrared, so star का glow जो है वो कम हो रहा है. That's why planet is also visible clearly here. This is the difference between optical and infrared. Obviously इसमें temperature drop हो गया है, right? Temperature drop हुआ तो energy भी drop होगा. And this is the difference between optical and infrared. See, ये जो difference आया उसके वजह से कितनी चीज़ों में फ़र्क है. ऑप्टिकल है तो स्टार्स दिखेंगे, इंफ्रारेड कंसिडर करोगे तो you can also view the planets and brown dwarfs also. So it's very nice. माइक्रोवेव है तो उसका सेंटीमीटर. सी माइक्रोवेव सेंटीमीटर में आ जाएगा. किधर लिखा है अपन ने? हाँ लिखा है माइक्रोवेव इन द सेंटीमीटर्स. उसका वेवलेंथ. टेम्परेचर इज less than 10 Kelvin. Background radiation of the universe, remnant of Big Bang. CMBR, I guess it's in the microwave. Okay, cosmic microwave background radiation. याद है पता है किसी को? नहीं मेरे को तो नहीं. CMBR थोड़ा सा पता है. Yeah, this is very famous thing यार. CMBR image. ये देखा है किसी ने? ये देखा है, ये नाम से याद नहीं था. ये वही है अंडा. वो याद है ना इन्होंने अपना शेट्टी सर ने बोला था, उनके किसी एक स्टूडेंट ने नाम दिया था बोर्ड एंड सिगार को अंडा और डंडा. अरे बाप रे, नहीं सुना है मैंने. सिगार लुक्स लाइक डंडा एंड दैट बोर्ड लुक्स लाइक अंडा. सो ओके शेट्टी सर आल्सो मेक्स जोक्स. हर किसी को अलग ही चीजें दिखती है वहाँ पे. यस. सो दिस इज अ CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इमेज. नथिंग बट रेमनेंट ऑफ अ बिग बैंग. यानी ये पूरा अपना विजिबल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है. ऑब्जर्वेबल है. ऑब्जर्वेबल नॉट विजिबल. या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है एंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है ये. ओके नेक्स्ट रेडियो वेव्स. इफ यू कंसीडरिंग रेडियो वेव्स द वेवलेंथ इज अप टू मीटर्स. टेम्परेचर इज सेम लेस देन 10 Kelvin. What you can see, radiation from electrons moving in a magnetic field, that is pulsars or maybe what you can say electrons emitting whatever the radiation and whatever जो भी रहेगा, these things can be the radio. हाइड्रोजन एज अ टूल टू प्रोब द यूनिवर्स. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मैम ने कुछ चीज़ें बताई थी जो मुझे ज़्यादा याद नहीं है. लेट्स ट्राई टू रिकॉल इट. About 99% of the interstellar medium is gas, with about 90% of it in the form of hydrogen, atomic or molecular form, okay, and 10% helium, and traces of other elements. Right, 90% is hydrogen in the universe. The hydrogen gas is observed in the variety of states. Ionized है, neutral atomics है, या molecular forms है, because hydrogen is the base element of
everything which we can see, which we can observe. So yeah, the obviously it is very obvious to say that it is in the abundant quantity in the universe. The ionized hydrogen emits light in the visible band as the electrons recombine with the protons. Okay, और फिजिक्स में जा रही है चीज़ें, ठीक है. The neutral atomic and molecular hydrogen emit light in the radio band of the electromagnetic spectrum. So ionized hydrogen होगा, if you are observing that, so you will be getting the visible wavelength, visible band of light, and neutral atomic or molecular hydrogen होगा, so you will be getting the radio band. Radio waves के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी होता है, वो GMRT भी पता है ना सबको. Everybody knows it, right? GMRT के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ. बस इतना पता है, जाने वाले हैं हाँ. आगे का नहीं. You need big basically big setup, क्योंकि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ही इतना बड़ा होता है कि इट कांट बी मेजर्ड विद स्मॉलर थिंग्स. तो उसके लिए स्क्वायर किलोमीटर्स में उसका प्लांट होता है हमेशा, प्लांट या जो भी है सेटअप जो भी बोलोगे वो हमेशा स्क्वायर किलोमीटर्स में ही होगा, बिकॉज इट्स नीडेड, इट नीड्स टू दैट बिग. हाइड्रोजन 2 H2, इसके बारे में कुछ बोला था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है. H2 रीजन्स ये पढ़ते हैं, याद आएगा. कुछ तो था लेकिन ये टॉपिक के बारे में. H2 regions, that is hydrogen 2 regions, are regions of hot several thousand Kelvin temperature, regions of hot thin hydrogen emission nebulae that glow from the fluorescence of hydrogen atom. Okay, the Roman number 2 of H alpha 2 means the hydrogen is missing one electron. हाँ ये था. So basically उन्होंने हाइड्रोजन ऑब्जर्व किया एंड देन एक और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एक मिसिंग है वो वाला जो रूप ऑब्जर्व किया उन्होंने. सो दे गिव इट कि हाँ दिस इज द सेकंड वर्जन ऑफ हाइड्रोजन मे बी. तो दिस इज H2. एंड अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम हॉट O and B stars ionizes the surrounding hydrogen gas. O and B stars के बारे में एक सवाल है मेरे को. यस, एक सवाल है. हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, तो फिर वो H+ होना चाहिए, तो H2 क्यों लिखा? अरे दिस इज व्हाट दे थॉट. ये नेमिंग कन्वेंशंस है. Naming conventions have gone wrong in many places. It is what it is as of now. जैसे ये बोला ना विनीता मैम ने कि हाँ किसी को एनर्जी पसंद है, किसी को वेवलेंथ बोलना पसंद है. सिमिलर वे दिस वाज द कन्वेंशन एंड वो आगे चलते आ रहा है. दैट इज द थिंग, दैट्स इट. When the electrons recombine with the protons, they emit light mostly in visible wavelength and primarily at the wavelength of 656 nanometer, giving the hydrogen emission nebulae their characteristic red color. एक दो चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ से. Let me show floating spectral class किधर है? नहीं, हाँ ये है. So ये पहले भी मैंने कहीं पे तो दिखाया, but let's see it again. So these are the spectral class of the star O, B, A, F, G, K based on their temperatures. Okay, from hot to cool. and यहाँ पे देखो ionized what their characteristics are यहाँ पे लिखा हुआ है. So what were we reading? Ultraviolet light from hot O and B stars ionizes the surrounding hydrogen gas. and यहाँ पे क्या लिखा है? O and B ionized helium and metal stars of weak, yes, and ionized metals stronger H, stronger hydrogen. So any confusion in this? अरे सीधा सर्च कर लो अनुष्का, क्या था हार्वर्ड स्पेक्ट्रल सीक्वेंस, दैट्स इट. ये फोटो चाहिए तो मैं शेयर कर देता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं मतलब इट्स नॉट कि लाइक बहुत सीक्रेट छुपा हुआ है, लाइक इट वो सब जगह मिल जाता है, वैसा बोल रहा हूँ मैं. हाँ, इसमें से 100% चीज़ें तो हमें भी नहीं पता. लाइक बाल्मर एच डोमिनेंट क्या होता है वो मुझे भी नहीं याद है और पता नहीं है, कभी सुना होगा तो आई डोंट इवन रिमेम्बर इट. मैडम ने आगे बोला था शायद से, पता नहीं. सो देखते हैं. ओरायन नेबुला, नाइस फोटो. लगुन नेबुला. नंबर क्या उसका, नंबर क्या है ओरायन नेबुला? ओरायन का 41 31 45 ओके. चेक करो भाई ओरायन नेबुला मेसियर 47 था ना, M47 था ना. ये 45 लेडीज है, क्या कर रहे हो? 45 है. 47 था ना. 40 सेव करो. 47 is my best bet.
ओ भाई 42 42 है। तो है 40 के सीरीज में था, इतना याद था मुझे, बाकी ओके बाकी नहीं याद था। हम्म Lagoon Nebula. लगून Okay. Large H2 region is the Lagoon Nebula. Is the Lagoon Nebula in the constellation Sagittarius. The complex interaction of the intense radiation from the hot stars lightening up the nebula, varying densities of gas and dust. The temperature differences creates twisted turbulent features in the nebula that have been explored by the Hubble telescope. So Lagoon Nebula again, टेलीस्कोप से देखोगे ना, स्लाइटली अच्छा दिखता है, नो डाउट। ऑब्वियसली कलर्स तो नहीं दिखेंगे, बट इट लुक्स नाइस, इट लुक्स नाइस। सो नेक्स्ट ये स्लाइड। आर्टिस्ट इम्प्रेशन है कि सच्ची में ऐसा दिखता है? बिकॉज आई डोंट दिस थिंक इज सो। द दूसरे वेवलेंथ्स में दिखता है, एक ऑप्टिकल में नहीं दिखता ऐसा। दिस इज द कंपोजिट इमेज। हम्म में कैसे कलर्स दिखेंगे? डू यू नो व्हाट द कंपोजिट इमेजेस आर? Yes, I do, but this one looks more of like an artist's impression rather than a proper image उस object का. Like, समझ लो अभी. आर्टिस्ट वाला अलग रहता है यार। But I thought, देखो ना, like look at the differences. वो कितना pixelated और ऐसा पेंटिंग किया हुआ सा लग रहा है. इतना डेफिनेट थोड़ी होता है वो तो वो है ना, shapes का. मे बी ये these are everyone who processes the images, okay, have their own ways, ठीक है। सब हम्म ओरायन का डेटा हमने लिया और हम सब लोग प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो सबका रिजल्ट अलग आएगा। अरे वो ऐसा है ना कि ये सब इमेजेस में स्टार जो बैकग्राउंड स्टार है रिमूव हो गए हैं, उस हाँ, वाले में रिमूव नहीं किया है उस बंदे ने। एंड Okay. ठीक है हाँ किसी को रेड देर कलर इज ज्यादा पसंद रुको है, रुको किसी को रुको ब्लू ज्यादा अनिकेत, पसंद देर इज अ फीचर जिससे आप स्टार्स को रिमूव कर सकते हो, बैकग्राउंड स्टार्स को इन द इमेज प्रोसेसिंग इट वहाँ पे। है। हाँ, यहाँ सो पे थोड़ा सा रिमूव किया हुआ है, इमेज हम्म छोटा लग रहा है। अरे वही इमेज मत क्लिक करो, गो टू द सोर्स। हाँ लाइक ओपन लिंक इन द न्यू टैब ऐसा करो। मे बी यहाँ पे बड़ा इमेज मिलेगा। यहाँ पे स्टार्स है, बट या थोड़े से। हाँ और इसका जो क्या बोलते हैं ना फ्रेम बहुत प्रॉपर उसी पे फिक्स्ड है, हाँ, और उसमें फ्रेम छोटू है। इसने ब्लूइश रखा है, कोई रेडिश, हम्म कोई ब्लूइश रखता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, क्योंकि कोई कंपोजिट कलर्स रखेगा, कोई ब्लू ज़्यादा रखेगा, कोई रेड ज़्यादा रखेगा। अभी जो रोजेट नेबुला है, किसी किसी को एकदम रेड पसंद है, कोई कोई थोड़ा सा रेड ब्लू मिक्स रखता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, द डिफरेंसेस विल ऑलवेज बी देयर। हम्म अगर 4 लोग एक इमेज एडिट कर रहे हैं ना सेम डेटा से, तो चारों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज वी हैव सीन हमारे 2 मेंबर्स विद नाइस एक्सपीरियंस, दोनों का इमेज Yes, हमेशा अलग आता है, रिजल्ट हमेशा बहुत अलग अलग आता आता है, जमीन आसमान का अलग आता है। है। यस, दे बोथ आर गुड इन देयर ओन वेज, लेकिन दोनों का रिजल्ट ड्रास्टिकली अलग रहता है। इट इज ऑलवेज नेक्स्ट 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 ड्रास्टिकली। स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। Trifid Nebula. Oh, it looks nice. Trifid Nebula so called because of the dust lanes that trisect the H2 hydrogen 2 region behind them. The red hydrogen 2 region behind a dark dust nebula, showing the effect of the extinction of light. And next to them is a blue reflection nebula, this one, showing a preferential scattering of shorter wavelengths. So these are the shorter wavelengths. ये dark nebula है, okay. This is a kind of reddish nebula. H1 region, okay. The best wavelength to use to map the distribution of hydrogen, however, are in the radio band. Most of the hydrogen gas is not ionized because O and B stars are rare. Yes, O and B stars come here because they are very very hot, very young stars. So those are rare stars. Newly born जो होते हैं वही O and B में जाएंगे, जितना मुझे पता है। Also, energy in the form of radio passes easily through dust. Yes, रेडियो वेव्स के बारे में पता है, मैम ने बोला था, अगर रेन्स होगा या क्लाउड्स होंगे तो भी हाँ तो अभी चालू रहेंगे यस, वो ऑब्जर्वेटरीज। ऑप्टिकल आईआर सब में प्रॉब्लम होता है, बट रेडियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी क्लाउड रहने दो, इट डजेंट मैटर। Most of the hydrogen gas in the interstellar medium is in cold atomic form or molecular form. Yes, because temperatures are less.
In 1944, Hendrik van der Hulst predicted that the cold atomic hydrogen, that is H1 gas, should emit a wavelength of radio energy from a slightly energy change in the hydrogen atoms. The wavelength is 21.1 centimeters, and this is the exact 21.1 centimeters जिस पे GMRT भी काम करता है, if you remember. 21 सेंटीमीटर लाइन. मोस्ट ऑफ द हाइट ओके है ना? यहाँ से मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या ज़्यादा? दिस इज ओके राइट? नहीं नहीं हाँ, 21 centimeter line. Most of the hydrogen in space, far from hot and B type of stars, is in the ground state. Okay, so the electrons moving around the proton can have a parallel spin or anti-parallel spin with respect to the proton. Yes, proton के direction में होगा या दूसरे direction में होगा. The energy state of an electron spinning anti-parallel is slightly lower than the energy state of parallel spin electrons, because it will be going in the opposite direction. So स्लाइटली उसका थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ना एनर्जी में. इमेजिन कर पा रहे हो ना, प्रोटॉन के अगेंस्ट अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका थोड़ा सा एनर्जी और स्पीड कम होगा, एंड उसके अगर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा. अट्रैक्शन और क्या बोलते हैं, रिपल्शन लॉजिक है वो. The atom always wants to be in the lower energy state possible. So the electron will eventually flip to the anti-parallel spin direction, emitting a photon of 21.1 centimeter wavelength. ये, if I am not wrong, ये ब्रेमस्टर्म को ये कर रहा है, indicate कर रहा है. ठीक है, I mean near about that thing. I don't know for sure. Even though this is a rare transition, the large amount of hydrogen gas means that enough hydrogen atoms are emitting the 21 centimeter light radiation at any one given time to be easily detected with radio telescope. So this is why GMRT also works on 21 centimeter light. Next, galactic rotation curve. Oh, the 21 centimeter line profile has several Doppler shifts, several Doppler shifted peaks that are narrow and well defined. Using the known rotation curve, you can convert the Doppler speeds of the peaks to get the distance of the hydrogen producing each peak. Intensity of each peak depends on the density of the hydrogen gas cloud. The mapping survey shows that the hydrogen gas is distributed in a spiral pattern in a thin disk of for almost all the galaxies. Okay, यहाँ पे अभी देखते हैं, try to figure out. इसके बारे में याद है क्या किसी को? I mean कुछ तो था, but मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे से एकदम. A has greatest इधर A, अच्छा A. He has greatest angular speed and moving fastest away from sun. A has higher density of hydrogen. Okay, B and C moving at about same angular speed, greater than sun's angular speed, outside solar distance, slower angular speed and has less material density. Okay, so ये क्या है, कुछ याद आ रहा है क्या? Is this the center of the galaxy? We are considering this as the center of galaxy or what? किसी को याद आ रहा है क्या? Frankly speaking, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, but I'm not able to get it 100%. सन कोने में रखा है तो आई थिंक सो इट्स द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी. हाँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट, लेकिन 100% याद नहीं आ रहा है. बट अगेन, सो इफ दीज थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप तो मुझे भी इमेजिन नहीं हो रहा है कि कैसे ये कैलकुलेट किया हुआ है. बट लेट अस अज्यूम कि ये 4 पॉइंट्स somehow they have calculated and observed 4 points, then उसके हिसाब से they can obviously check for the speed of rotation.
ऐसा क्यों लग रहा है कि ABCD वो गैस के क्लाउड्स का मतलब वो स्पाइरल कुछ तो रहेगा, गैस क्लाउड्स हो सकते हैं। हाँ, मे बी सम काइंड ऑफ नेबुला या कोई एक गैस क्लाउड जो पर्टिकुलर उन्होंने चेक किया है. सम ए, लेट्स से ए इज नियर टू द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, बी एंड सी A is at the closest to the center, क्लोजेस्ट टू द इसीलिए उसका सेंटर स्पीड ज्यादा है. ज़्यादा है. यस, और B का थोड़ा बी और सी B सिमिलरली डिस्टेंस पे सिमिलर रहेंगे, इसीलिए वहाँ पे उनका स्पाइरल बनाने वाला है वो लोग. एंड डी इज मतलब आउटसाइड द बेसिकली गैलेक्सी. ऊपर के 2-3 पॉइंट्स पढ़ो ना, उसमें लिखा है कि वी नो द स्पीड का लोचा क्या है हमारे पास, इसीलिए वी आर अज्यूमिंग कि गैलेक्सी हमारा आर्च वो क्या बोलते हैं ना, आर्म्स बनाने वाली है, वैसा है. अच्छा, हाँ, और इसके इससे लिए आप भी यार. इसको वो कर रहे हो कि वो किस आर्म में डेंसिटी क्या कैसी है, मतलब डेंसिटी मतलब कितना स्टार्स कचरा भरा पड़ा है. मैं उसको कचरा बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्टार्स रहते हैं वो सो एक्चुअली. बेसिकली हाँ. सी एंड बी पॉइंट्स जो है, these points are in a few particular arms of the galaxies. Right, या right. C और B point, करेक्ट. including C और Sun तो है जो वो हमारे एक ही आर्म में होगा, right. B is somewhere in the other arm. D is outside the outside the galaxy. सोलर सिस्टम. Galaxy. नो सब गैलेक्सी में है. इट इज जस्ट कि डी ऊपर लिखा है ना वो इसी में, वो D डी is इज आउटसाइड outside द सोलर solar डिस्टेंस distance. एंड हैज लेस स्पीड. सोलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी ना, तो बेसिकली गैलेक्सी से बाहर ही हुआ वो, या ठीक है, या गैलेक्सी या हमारे से दूर हुआ. हमारे से दूर है. इट इज जस्ट कि कभी इन फ्यूचर सन उस पॉइंट पे आएगा, और ये डी वाला पॉइंट अगर वहीं पे रखोगे इट विल बी सन के बाहर, वैसा इट इज उस इनसाइड लॉजिक द से. गैलेक्सी, बट वो हम्म, अगर सन के. हमारा और सेंटर ऑफ द गैलेक्सी का डिस्टेंस काउंट करोगे तो हम्म, डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, दूर है मतलब. करेक्ट. या आई गाइस, गॉट इट नाउ. बोलो ना. तुम लोग में किसी ने वो क्विज सॉल्व किया है स्पेक्ट्रा का? स्पेक्ट्रा Nope. का भी सॉल्व करने वाले हैं, कुछ नहीं देखा आया है? इसका. देखा बोले ना. है बट हिम्मत नहीं हुई मेरी सॉल्व करने की. I tried solving it, मेरे को लास्ट के 5 क्वेश्चंस गलत आए. मी अरे काय म्हणतो, मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया. मैंने उसका दिया था माइनर बॉडीज का, मेरा रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक. आया रहेगा. नहीं आया. नाही पण मी ये काय एक्चुअली म्हणतो, मैंने ना आता हे टेस्ट करतोय ना मैंने आपण, आज. हाँ बोलो 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 पार्थ. जे आता स्पेक्ट्राचं जे आपण स्पेक्ट्रा करतोय त्या विथ रिस्पेक्ट टू क्विज करूया का? कारण काय ना, आपण हे इतर गोष्टी बघण्यात वेळ घालवणार नाही. म्हणजे ज्या नाही. प्रकारचे प्रश्न आपल्याला क्विज मध्ये विचारले, सिमिलर प्रश्न क्वेश्चन आपल्याला टेस्ट मध्ये विचारले जाणार, आय बिलीव्ह. हाँ, त्यामुळे दैट इज राइट. पण त्याच्याच अंगाने जर बघितलं आणि हे केलं तर मग जास्ती वेळ वाया जाणार नाही आपला. नाही, दॅट इज राईट. बट आय फील आपल्याला पीपीटी कंप्लीट केली पाहिजे. पण स्लाइड्स आर रिमेनिंग. क्विजच्या ठीक आहे, चालेल कर. Only पण few slides मग are there, मी ना? बेसिक ते आहे की जास्ती ज्या स्लाइड्स वर विचारलं नाहीत किंवा ज्या स्लाइड्सच्या बद्दल क्वेश्चन विचारले त्यांच्यावर आपण जास्ती फोकस करू. हाँ, नहीं, Instead दैट of इज राइट. बट व्हॉट वी आर डुईंग हियर की आपण आहे ना हे रेकॉर्ड का करतोय की इन फ्युचर आपल्याला अख्खा टॉपिकच आपल्याला रिवाइज झाला पाहिजे. सो वी शुड कव्हर द टॉपिक. हे मग मला एक कॉल येतोय, इम्पॉर्टंट कॉल आहे. जस्ट गिव्ह मी 2 मिनिट्स. ओके, गिव्ह मी 2 मिनिट्स. हेलो, हाँ बोला बोला. मैंने एक्चुअली Oh, नोटिस किया है definitely. कि जो हमारा लेक्चरर है जो टॉपिक वाला है, हाँ हाँ, और शेट्टी सर का लोग सिंक्रोनाइज नहीं जाते हैं. शेट्टी सर कुछ और क्वेश्चन देते हैं सेम Okay, टॉपिक okay. से, पढ़ाने वाला बंदा कुछ और पढ़ा के जाता है चालेल सेम चालेल, मी टॉपिक देते से. ना तुम्हाला. बीच में हम लोग पिसते चालेल हैं. चालेल, भेटूया सोमवारी, भेटूया नक्की. ये मैंने नोटिस किया है. चालेल चालेल. मैंने वो हाँ. क्वेश्चंस ना एक्चुअली जो हम लोग को जो सिखाया है और जो क्वेश्चंस डाले हैं ना, क्वेश्चन हाँ. जो डाले हैं वो 11th-12th के फिजिक्स पे डाले, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस. बाद के क्वेश्चंस वो उन्होंने पीपीटी से कोई तो और रिलेशन का मतलब ऐसा हाँ वही तो लाइक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन टाइप वो लोग से कोऑर्डिनेट नहीं कुछ करते हैं कि लाइक क्या relation- चलना चाहिए, क्या पढ़ाया I मैं am लोग back. हम लोगों I ने. am back. I am back. back. Let's go ahead. या Molecular वैसे बाकी hydrogen. कोई. The cold molecules are detected in radio band. Obviously cold है तो रेडियो में ही जाएंगे, right? Because intensity कम है तो wavelength लंबा होगा. Most of the molecules are H2 and CO. I mean carbon क्या है, CO है? मोनोऑक्साइड. Carbon monoxide. हाँ.
H2 does not emit radio energy, but it produces absorption lines in the UV. Okay, ultraviolet में produce करता है. So let's see how these things going on. The gas and the dust become so thick in a molecular cloud that the UV extinction is too large to accurately measure all the H2 in the interior of the cloud. ठीक है. Two molecules collide with CO molecules, carbon monoxide, emitting 2.6 millimeter and 1.3 millimeter lines of radio band. अच्छा, okay. An increase in the density of H2 gas results in more collision with the CO molecules and an increase in the CO emission. Stars form in the molecular cloud. If the molecular cloud is cold and dense enough, it can collapse under its own gravity. क्लाउड अपने ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो तो क्या होगा इसका? आई एम नॉट स्टार नहीं यस करेक्ट स्टार ही बनेगा ना. यस ब्लैक होल नहीं बन सकता, नहीं बन नहीं सकता, नहीं नहीं बन सकता. सी बराबर हो रहा स्टार बनेगा. सॉरी 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 मैं कुछ और ही वे में थिंक कर रहा था. इट सी व्हेन इट कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन ग्रेविटी तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ही अंदर से तो इग्निशन चालू होता है. दैट इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोस्टैटिक. तो दिस थिंग विल फॉर्म अ स्टार. करेक्ट. किसने बोला था स्टार? इट वाज वेरी राइट आंसर. बहुत इंट्यूशनली मैंने बस बोल दिया था लाइक हाँ हाँ राइट. बिना कुछ सोचे लाइक वो क्या हो रहा है क्लाउड से क्या बन सकता है और ज्यादा से ज्यादा यस यस करेक्ट. नहीं ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ मल्टी वेवलेंथ. ठीक है. ओके. मून कैसा दिखता है? रेडियो वेव्स में, इंफ्रारेड में, विजिबल में ऑफ कोर्स सबने देखा है. गैमा रेज, एक्स रेज एंड यूवी. ओपन क्लस्टर प्लीडीज ना. वाओ. ये सिर्फ है ना मुझे लगता है विजिबल में ही अच्छा दिखता है. बाकी कहीं में भी अच्छा नहीं दिख रहा है. नहीं फार आईआर में मस्त क्यूट दिख रहा है. वांटेड. ए मुझे एक सवाल है. हाँ बोलो मुझे ना. एक सवाल. जब हम टेलीस्कोप से प्लेनेट्स को देखते हैं तो लाइक ओरायन नेबुला को देखते हैं तो हम लोग को उसका थोड़ा सा ऐसा Cloudy फजी दिखता है. पैचेस दिखता है गैस का. लेकिन प्लेडीज में ऐसा साइड का जो फजी पैच है गैस का वो नहीं दिखता. वो ऐसा दिखता है. डार्क ग्रेइश भी नहीं दिखता दिखता. है. दिखता है. दिखता है. Your eyes needs to be trained धीरे धीरे. In the clear skies with the bigger telescopes हम्म. so you will definitely be able to view it. अरे हमको लद्दाख में तो हमको नेकेड आई को उसका नेबुलसिटी दिस इज कॉल्ड नेबुलसिटी. ये जो ग्लो है ना व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट नेबुलसिटी. लद्दाख में हमको नेकेड आई से विजिबिलिटी उसका नेबुलसिटी दिख रहा था. कैन यू गेस? नेक्स्ट फास्ट कैन यू इमेजिन? मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे मैडम भी भूल गई थी कौन सा क्या है. हम भी भूल गए. नेक्स्ट सो हम भी भूल जाते हैं. यस. दिस शुड बी विजिबल राइट. visible. This should be visible. This is visible. Yes. Next, optical, not visible. हाँ वही optical. Gamma ray bubbles. Okay. Two large gamma ray bubbles left are linked to the galaxy's heart by chimneys, each hundreds of light years long. Obviously, illustrated center in X-ray image right. अच्छा ये this is the X-ray image. क्या ही दिख रहा है. ठीक है. ये कोई एक पर्टिकुलर गैलेक्सी का पीछे भी इमेज था बट मुझे नहीं पता क्या कौन से गैलेक्सी का है वो. एटमॉस्फेरिक विंडोज. रेडियो वेव्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. विजुअल ही आ रहा है. आई मीन दीस थिंग्स आर गेटिंग इंटरफियर्ड बाय व्हाट यू कैन से एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड ऑल बिकॉज एक्सरे पे स्टडी करने वाले ज़्यादा आईआर में स्टडी करने वाले ज़्यादातर टेलीस्कोप्स आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर है ना. दैट इज एंड जेम्स वेब एंड मैडम ने जिस पे काम किया दैट इज एस्ट्रोसैट. these satellites and these things are working above the of the earth so that कोई disturbance ना आए IR या X-rays या gamma rays डिटेक्ट करने में. बैंड gamma ray. हाँ ये यही इमेज का एक्सप्लेनेशन है. gamma rays stopped by ionization और Compton scattering observed from balloon और space. balloon missions भी हुआ करते थे मैडम ने बोला था. याद है किसी को? मेरे को नहीं याद है. आफ्टर सम टाइम वो उस टाइम पे बेसिकली बलून पे बैठ के या बलून पे एक टेलीस्कोप रख के एक सेंसर रख के वो लोग ऊपर भेजते थे एंड चेक करते थे बिफोर द सैटेलाइट्स वेर डन. उससे पहले की बात. एक्सरे बैंड्स आर स्टॉप्ड बाय आयनाइजेशन ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व फ्रॉम स्पेस में जाना पड़ेगा, यूवी के लिए भी स्पेस में जाना पड़ेगा। ऑप्टिकल का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड से दिखता है, सबने देखा है। नियर IR CO2 H2O बट क्लियर बैंड्स से स्टॉप हो रहा है। माउंटेन टॉप से देख सकते हो नियर IR। फार IR के लिए स्पेस या एयरक्राफ्ट में जाना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर ऑब्जर्वेशन से इट इज़ गेटिंग स्टॉप। सब मिलीमीटर्स में मॉलिक्यूलर ऑब्जर्वेशन होता है माउंटेन टॉप से, यू कैन सी। एंड रेडियो वेव्स आर क्लियर एज एवरीबडी नोस, ग्राउंड से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो रेडियो वेव्स तो क्लियरली हमेशा ऑब्जर्व होंगे, मतलब रिकॉर्ड होंगे, नॉट ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, एंड वी एंड, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट द क्विज। क्विज कौन करने वाला है, मैं ही करूँ? स्क्रीन आप पे शेयर हो रहा है ना? डैम, तो मतलब गलत होगा तो मेरा ही होगा। अरे प्रैक्टिस है। ओके, लेट्स सी। फोटोन ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेस्पॉन्ड्स टू। आई डोंट वांट टू गो इन द पीपीटी, फिर वो चीटिंग है। थोड़ा सा याद करने का कोशिश करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, लेस एनर्जी है ना उसका, तो हाँ लेस एनर्जी है, तो सबसे लीस्ट एनर्जी कौन सा है? इट विल बी गोइंग इन ऑब्वियसली विजिबल से, तो राइट में ही जाएगा, वो माइक्रोवेव में जाएगा। माइक्रो। सी हम हमारा नोट्स तो देख सकते हैं। सी यहाँ पे क्या था, एक्सरेस में तो नहीं, विजिबल में डेफिनेटली नहीं है, IR में, IR से ज़्यादा तो माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव में जाएगा। किसी और को इनपुट देना है तो दे दो यार। I think you should rethink about your solution. Try solving it first. वो भी कर सकते हैं। Instead But- of making direct guesses, it could lead to a loss in your points. And plus तुम्हें intuition भी नहीं आएगा कैसे solve करने का उसको. So पॉइंट्स use तो the ठीक है, formula. पॉइंट्स डजंट मैटर एज ऑफ नाउ, ठीक है, बट हाँ, बट द ओनली थिंग इज यस की आपले सगळ्यांची प्रॅक्टिस होईल इफ वी चेक अँड डू इट. आयडिया. Try to remember the formula instead of scrolling up. Now that's cheating once again. Try to remember the formula. Ah, hell no. फॉर्म्युला नाही रे, एनर्जी कुठे होती त्या इलेक्ट्रॉन्सची कुठेतरी. आय डोंट रिमेंबर द एक्झॅक्ट स्लाइड. लेट मी चेक. हेच आहे रे, तो पण आहे इथं दिलं ना. वही है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आणि वरती रेडिएशन अच्छा, वेवलेंथ. हे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आहेत ना. इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी समवेअर हियर. IR मध्येच येईल ना मग ते. आयर विजिबल मध्ये तर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आहेत. विजिबल मध्ये येईल मला वाटतं. तो मतलब hc/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको सॉल्व करना है, राइट? क्या? हाँ हाँ. Yes, HC by lambda use करके एक बार solve करके देखो. H is what? अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है. प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ, क्या था वो? सॉरी, प्लैंक्स कांस्टेंट तो लिखा हुआ होगा, सो लेट्स नॉट ट्राई टू फिगर आउट. 4.35 what? -15. The whole thing into क्या है वो? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 299. 3 into 10 raised to 3 8 कर into दो 10 to ना। the power अच्छा 8. वैसा करना है, ओके. क्यों इतना मच वो भी कर सकते हैं. 3 into 10 to 10 raised to 8। हाँ 10⁻8, yes. ओके, देन डिवाइड बाय लैम्डा. क्या था लैम्डा? लैम्डा ही तो फाइंड करना है, इसमें आपको Lambda एनर्जी find निकालना out है, करना है. तो एनर्जी आपका Visible- 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा ना. वही मेरे को उसका डाउट है कि लाइक हाँ, लैम्डा को स्विच करना है ना. सी लैम्डा को आई नो, मैं बोल रहा हूँ यूनिट्स का, यहाँ के वहाँ कर रहे हो वहाँ शिफ्ट करना. तो उसका 6.20 आ रहा है मेरा कुछ तो. आंसर मीटर्स में आएगा, जो भी आएगा Okay. मीटर्स नहीं आएगा. हाँ 6.20 में आ रहा है. 6.20 येतंय तुला मीटर्स. रेस्ट टू आई मीन 10⁻⁻7 म्हणजे ऑब्वियसली 10⁻⁻7. it So will be take going it. here. It will be going here. IR मध्ये सॉरी विजिबल मध्ये येईल ते, म्हणजे सी हियर विजिबल मध्ये येणार ते. Yes.
I say I go for visible. Let's go ahead. Are we okay? हम्म Should we go ahead? चलो चलो चलो, किसका वेट कर रहे हो? अरे बोलो तो, लोग बोलेंगे तो मैं जाऊंगा ना आगे. A filament of an. हम सब इतना आ रहा है ना स्क्रीन पे। अरे अरे उसको मैं नहीं स्क्रीन नहीं दिखता देख है, रहा हूँ, उसको मैं नहीं ये दिखता देख है रहा नहीं हूँ ना. बाबा। चलो आई एम screen नॉट में एबल टू सी दिख- दिस साइमल्टेनियसली. मैं सिर्फ ये देख. उसका इसके पास एक ही स्क्रीन है टॉक. लैपटॉप वी में। हैव टू टॉक. हम्म Filament of an incandescent lamp has temperature of 2900 Kelvin. What will be the wavelength in which it gives the peak radiation? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? Wiens का, because the Wiens T displacement max law. would be the peak wavelength, right? किधर था वो Wiens displacement law? T equals to 2.898 into 10 to the power 3 divided by lambda max. वो ठीक है, वो था किधर पहले, देखने तो दो मुझे. थर्ड या फिर फोर्थ स्लाइड में था, ऊपर है, बहुत ऊपर है. ये ये ना टेम्परेचर ही निकालना है ना. लैम्बडा मैक्स उसका क्या है वेवलेंथ? अच्छा टेम्परेचर दिया है, लैम्बडा मैक्स निकालना है. कैलकुलेट करो यार तुम लोग भी. सीधा केल्विन से कैलकुलेट करना है. 9.99 into 10 to the power minus 7 है. -7 आ रहा है, मेरा भी सेम आ रहा है आंसर. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस 1 माइक्रोन है नहीं. 1 माइक्रोन इज व्हाट? 1 मायक्रॉनच येणार बघ ना. तुला 10 to the power minus 6 करायचं आहे, तर तू 9.99 ला 0.99 करणार. तुझ्याकडे 0.9 चा ऑप्शन नाहीये, तर क्लोजेस्ट वनच घेणार ना तू. अच्छा 1 आहे येणार, बरोबर. Energy of a photon corresponding to wavelength 550 nanometer is परत तेच ना, E is equal to hc अपॉन हा वालाच फॉर्म्युला ना. फक्त हीच फाइंड आउट करायचं आहे याच्यामध्ये. वेवलेंथ आहे आपल्याकडे दिलेली आहे. एच अँड सी वी नो. सो आपण फिगर आउट करूया काय असतं फॉर्म, काय आहे व्हॅल्यू त्याची. एच इज 4.135 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 इंटू 10⁻8 था ना वो सुरेंद्र. मैं कैलकुलेट ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, मैं देख नहीं रहा हूँ स्क्रीन. डिवाइड बाय 2.25 इंटू 10⁻9 आ रहा है मेरा. ये आएगा आंसर, नियरेस्ट विद आंसर. वो पूरा वैल्यू लिया ना, उसका बड़ा वैल्यू है एच का, तो मे बी उसके वजह से आंसर वेरी हुआ होगा. हाँ 2.34 के आसपास जा रहा है. सो दिस इज द राइट आंसर. When the temperature of black body is increased from 2000 Kelvin to 3000 Kelvin, what happens? The peak shifts from 1.45 micron to 0.97 micron, and now it emits less radiation at 1.45 microns than earlier. The peak shifts from 0.97 to 1.45 micron, and now it emits less radiation. The peak shifts from अरे क्या है? And it still emits more than 1.45. Okay, the peak shifts from. Okay, first of all, इसके लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा. ये हमने क्या किया था? Anybody remembers? 2900 अगर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज केलास ना. हाँ, so 2900 अगर था,
टेस्ट का कितना टाइम रहने वाला है, कितना मिनट्स का टेस्ट होगा? 1 आवर मे बी। 30 मिनट्स रहता है यार, 1 आवर लास्ट बहुत हो टाइम 1 जाता आवर से है। ज़्यादा हो गया था। वो 1 आवर भाई, आपका डिस्कशन भी हुआ था इसीलिए। नहीं 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 नहीं, 1 आवर प्रॉपर दिया था। पक्का? यस कि डेफिनेटली। आपके पास पेपर रहेंगे ना, पेपर देखो ऑनलाइन उसमें कितना दिया टाइम एक लिमिट। एक तास पेपर सॉल्व करायला दिलेला की क्वेश्चन पेपर डिस्कस पण केलेला त्या एका तासात? पेपर सॉल्व करायला दिलेला। ये पार्थ तुम थे राइट? सोहन, तुम लोग 1 घंटा ही दिया था ना। हाँ, था? आई थॉट 30 मिनट्स था। 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा हो गया था वो। अच्छा 12 बज गए थे हमें। नहीं हाँ 12 ही बज गए थे ना, 12 या 11। 12 के आसपास बच गए थे। हाँ बहुत टाइम मिला था। एक मिनट हाँ, 2000 अगर मैं डाल रहा मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इथं रीड कर ना. तेच करतो। एक मिनिट अच्छा रीड परत तिकडे 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 बरोबर त्याच पानावर होतास. याच ना। हम्म The peak intensity shifts to longer wavelength as temperature decreases. अच्छा सो हे बघ ना, टेम्परेचर डिक्रीज फॉर्म्युला इन्क्रीज झाले, इकडे तर इन्क्रीज झाले ना टेम्परेचर। इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ तो ये शॉर्टर वेवलेंथ होंगे राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सी अगर टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, सो टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी राइट। सो फर्स्ट टेम्परेचर वेवलेंथ छोटी होगी, ये तो समझ लो 1.45 से 0.97 में जाएगा, तो ये दोनों में से अभी एक आंसर है। ओके एंड नाउ इट इमिट्स लेस रेडिएशन। अगर टेम्परेचर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, सो मोर रेडिएशन होगा उसका राइट। गॉट इट? मैंने कैसे लॉजिक लगाया है इसमें। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वेवलेंथ छोटी हुई, वेवलेंथ छोटी हुई मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ेगी तो उसका एमिशन ज़्यादा होगा। ओए या ओए सॉरी हाँ या फिर या लेस रेडिएशन कैसे होगा, मोर रेडिएशन होगा ना। अगर वेवलेंथ छोटी हो गई तो उसका इंटेंसिटी बढ़ गया ना, तो मोर रेडिएशन ही होगा राइट। द पीक शिफ्ट्स फ्रॉम 1.45 माइक्रोन टू 0.97 माइक्रॉन्स ओके एंड इट स्टिल लिमिट्स मोर नहीं ओए हाँ वेवलेंथ छोटी ती है ना, फोर्थ ऑप्शन येईल. फोर्थ ऑप्शन आय गेस. हां ये मोठी वेवलेंथ झाली ना। नाही टेम्परेचर शिफ्ट झालं तर 1.45 पासून 9.97च होतोय। हाँ हां दॅट इज ओके। आता ह्याच्या पुढे काय, थर्ड मध्ये तुला चूज करायचं। थर्ड आणि फर्स्टमध्ये चूज करायचं आहे मला। द हा. पिक शिफ्ट्स. हे बघ लेस रेडिएशन डेफिनेटली नाही होणार। ए बरोबर थर्डच वेवलेंथ कमी होणार ना. बरोबर बरोबर मी मोर कन्फ्युज रेडिएशन झाले. होणार ना। थर्ड एक मिनट जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन। द पीक शिफ्ट फ्रॉम 1.45 माइक्रोन टू 0.9 नाउ इट इमिट्स लेस रेडिएशन एट 1.45 माइक्रोन देन अर्लियर। 1.45 ला तो कमी इमिट करतोय। सी व्हॉट इट सेज की पहिले तर वेवलेंथ छोटी झाली 1.45 वरनं 0.97 झाली अँड नाव इट इमिट्स लेस रेडिएशन ॲट 1.45 मायक्रॉन दॅन अर्लियर। बरोबर, इथून वेवलेंथ इथे झाली तर मग इथलं रेडिएशन कमी होणार ना। आणि इथे काय लिहिलं आहे, इट स्टील इमिट्स मोर ॲट 1.45 मायक्रॉन. डेफिनेटली नॉट, बिकॉज 0.97ला जास्त रेडिएशन होणार राईट. द emission will be more at 0.97 right. This is okay. अरे बोलो, आई कांट सी योर थम्स अप और वॉट एवर यू आर डूइंग, वो मैं देख करने जाऊंगा तो इधर से हट जाऊंगा। मैं फिलहाल कंफ्यूज हूँ, मैं फटाफट आराम से बोलो। ठंडे दिमाग से सोचने वाला हूँ। हे इंग्लिश मध्ये कन्फ्यूज केले का सरांनी आपल्याला? सुरेंद्र सी दिस
बोलो बोलो। लॉजिक देखो, लॉजिक देखो, वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम बिगर टू शॉर्टर, हम्म। तो शॉर्टर वेवलेंथ में ज़्यादा रेडिएशन और ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, ये या उसको ट्रैवल कम करना पड़ रहा है इसीलिए। राइट? और हाँ यहाँ हाँ। भी अभी सेकेंड पार्ट देखो, नाउ इट इमिट्स लेस रेडिएशन एट 1.45 माइक्रोन देन अर्लियर, बिकॉज अभी रेडिएशन 0.97 में ज़्यादा हो गया ना, हम्म। सो दिस शुड बी, लेस रेडिएशन। सी वेवलेंथ शिफ्ट यहाँ से यहाँ हुआ, हम्म। बराबर, तो यहाँ पे रेडिएशन कम हो गया ना, यहाँ पे बढ़ गया ना, यहाँ पे कम हो गया, दिस शुड बी द आंसर। जाते हैं ना, आगे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं ना, गलत हुआ तो Black गलत body हुआ। sphere at temperature of 1000 Kelvin is emitting 200 watt power. Another black body of same size at 1500 Kelvin will emit approximately how much power? एक मिनट, थ्री हंड्रेड। कैसे? लाइक मेरे को कुछ पता ही नहीं, इसलिए पूछ क्रॉस रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, रेशियोज काउंट कर रहे हैं हम उसके। ओके। अरे 100 इक्वल हम्म टू 100 अपन हम्म 100 अप्रोक्स इक्वल टू व्हाट, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो चाहिए ना, तो 300 ही होगा ना। सिंपल कैलकुलेशन बताता वो हूँ, रेशियो वाला ही लॉजिक यूज करना है, पक्का है? मोर सिंपल में जाओ, देखो मोर सिंपल, एक सिंपल एक लॉजिक हम्म दिखाता हूँ मैं इधर। रेशियो छोड़ दो, अगर 1000 पे 200 कर रहा है हम्म। तो 500 पे 100 करेगा, एंड यहाँ पे दोनों सेम साइज लिखा है तो साइज का डिफरेंस नहीं है। 1000 पे 200 है तो 500 पे 100 होगा, राइट? एवरीबडी अग्रीज ऑन दिस? तो मेरे को 500 कुछ नहीं ऐड पता। करेंगे तो 300 ही होगा। मेरे को डाउट आ रहा है बिकॉज इट इज ब्लैक बॉडी, यहाँ पे कुछ और भी कांड और फैक्टर्स हो सकते हैं, कुड बी। यही होगा ना? नहीं, यहाँ पे एनर्जी है ही नहीं ना आपका इस फॉर्मूले में तो। जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम हैविंग, हम्म। हेलो, वरच्या रूम मध्ये हो, ये पावर का कोई फैक्टर ही नहीं दिया ना उधर उस हाँ, सो मेरे फॉर्मूले हिसाब से में। ये राइट है, लेट्स गो अहेड। हम्म Stars have their spectra following black body spectra. Star A has radius of 2 into 10 raised to 6 kilometers and star B has radius of 4 into 10 raised to 6 kilometer. Their surface temperature are same. If luminosity is of A is 2 into 10 raised to 28 watts, then what will be the luminosity of B? अब यहाँ पे साइज का डिफरेंस है, ओके? इसका लुमिनोसिटी का फॉर्मूला है क्या? 4 into 10 बट raised to 28 ही आना चाहिए, नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखना है क्या? इसका एक फॉर्मूला है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसमें दे हैव द रिलेशन बिटवीन द लुमिनोसिटी एंड टेम्परेचर का। ओके। तो मैं कब से वही तो बोल रही हूँ। अच्छा, अरे तो देखा नहीं यार, बोलो, वैसा सीन है। स्पीक आउट, वो मैसेज मत करो, मैसेज में नहीं। I was trying to speak, but you guys were speaking, so I did not interrupt. अरे अरे बोलो, अगर आ रहा है तो बोलो, बिकॉज हम्म। ऑल्सो कंफ्यूज, ये टॉपिक हमारे एक्सपर्टीज से बाहर है, Okay, okay. फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सपर्टीज से बाहर So, है। जिसका एक्सपर्टी है वो तो भाग गया एक बंदा, कौन? पार्थ।
So जितना so there is this law Stephen Boltzmann law. It says कि जो एनर्जी उस बॉडी से निकलती है, रेडिएशन जो निकलती है फ्रॉम अ सरफेस पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर का द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब T to the power 4 से वो पावर डिवाइडेड बाय लाइक एरिया जितना आता है वो उसका. What should I search here? Tell me. I just pasted it. Boltzmann law. Stephen Boltzmann law. Stephen? इट्स अबाउट ब्लैक बॉडीज. सो बेसिकली सर ने क्या किया पता है, वो ब्लैक बॉडी के रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना वही उठा के उन्होंने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, Boltzmann. क्योंकि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एक साथ जाते हैं, लाइक टुगेदर, स्टॉट टुगेदर. Yeah, the total यस radiant, एक्जेक्टली. radiant heat energy emitted from a surface per unit time is directly to the fourth power of its absolute temperature. अच्छा. आता ते एरियाला तिकडे घेऊन जा फक्त हवं तर. एरियाला एरिया जो आहे ना तो डिवाइड बाय पॉवर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया हा त्या तिकडे त्याला घेऊन जा. एला तिकडे नाही, एला एला जर तू राईट साइडला नेलंस तर काय तुला भेटणार, P इक्वल्स टू ए सिग्माच आहे ना ते. सिग्माच आहे हा. हा, सिग्मा T to the power 4. Divide आता by A, क्वेश्चन बघ तुझा. नाही सॉरी क्वेश्चन इंटू बघ. ए, सॉरी इंटू ए, येस इंटू ए होणार ना ते. क्वेश्चन अच्छा. क्वेश्चन मध्ये त्यांनी काय दिलंय की रेडियसेस दिलेत बरोबर आणि लुमिनॉसिटी दिली आहे. लुमिनॉसिटी इज इन वॉट, सो बेसिकली इट्स लाइक पावर का इक्विवेलेंट उन्होंने दिया है. सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया बराबर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, एरिया इज व्हाट, रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बट पाई कांस्टेंट है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे. तो P is directly proportional to R square, and then it's like P1 upon P2 equals to R1 upon R2 the whole square, and then you solve it. So what will be the answer? Try to solve it. I solved it. The answer is 10 to the power 28. 8 into 10 to the power 28. Sorry, my bad. 8 into 10 to the power 28. Yes. Also, ऊपर का क्वेश्चन भी. Also ऊपर का क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऊपर भी वही फॉर्मूला लगा है, तो 300 कैसे हो सकता है आंसर. सो सेम ट्राई साइज है सॉल्विंग. ना, यहाँ पे साइज का डिफरेंस है, यहाँ पे सेम साइज. हे बघ टेम्परेचर पण फॉर्म्युला काय आहे, P इज इक्वल टू ए सिग्मा T to the power 4. सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का फोर्थ पावर. और इधर पावर सेम साइज है लेकिन टेम्परेचर अलग है ना दोनों का. सो टेम्परेचर पे भी तू सॉल्व करेगा, तुम्ही सॉल्व कराल. सॉरी, भाई मी आता डायरेक्ट गुगल करेन ना, माझं डोकं हँग व्हायला लागले. हे बघ सिम्पल. आता दोन बॉडीज आहेत, ओके दोन बॉडीचे साईज सेम आहे म्हणजे त्यांचा एरिया सेम राहणार. येस. आता स्टीफन बोल्ट्झमॅन लॉ कडे जा. तुझा फॉर्म्युला काय आहे, P इक्वल्स टू, तू एक काम कर, वर्ड डॉक्युमेंटवर हा कॉपी कर, हा पूर्ण गोष्ट कॉपी कर तो फॉर्म्युला आणि वर्डवर टाईप कर. हा अरे हे हा ठीक आहे ना, आलंय हे बरोबर आहे. हा आता काय कर, तो ए कट कर आणि ए तिकडे लिही. ए डिवाइड, तो डिवाइडचं चिन्ह काढ आणि ए तिथे लिही, कॅपिटल ए. तर T to the power 4 कर त्याला, म्हणजे तुला ते हे होईल. हा आता बघ, तुझा एरिया सेम आहे तर एरिया आणि सिग्मा तर तुझा एमएससीव्हीटी आहे, सो ते कॉन्स्टंट्स आहे, तू त्यांना घेणार आहे रिलेशन मध्ये. सो तुला रिलेशन काय भेटतंय, पॉवर हे टेम्परेचरवर डिपेंडेंट आहे, टेम्परेचरच्या फोर्थ पॉवरवर डिपेंडेंट आहे बरोबर. सो तुझे साईजेस सेम आहे, सो तू त्याच्यावर लक्ष देऊ नको, तुला दोन टेम्परेचर्स दिले आहेत. सो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 द होल पॉवर 4. रेस टू 4. हा आता ते सॉल्व कर, मग त्याच्या अकॉर्डिंग तुला 300 उत्तर नाही येणार. साईज सेम असली पण टेम्परेचर पण मॅटर करतं ना तिथे, म्हणून ते उत्तर वेगळं आहे. मग जर 1500 रेस टू 4 करायला लागेल. हा, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 टू द पॉवर 4. तुला काय फाइंड आउट करायचंय, P2 फाइंड आउट करायचंय बरोबर. तर तू ते शिफ्ट करून P2 ची व्हॅल्यू काढणार किंवा तू P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T2 टू द पॉवर 4 घेणार.
P is what? P is what? T is the temperature. P. Capital T. P. P is the power. अच्छा power. Okay. So तो P2 upon P1 घेणार ना तुला तू काही पण घेऊ शकतो P1 P1 upon upon P2 P2 किंवा आहे. P2 P1 ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे. हो P2 P2 काढायचं फाइंड आउट. and is equal to T1 upon T2. So Yes. into 1500 into 1500. To the power 4. अरे हा एक मिनिट सॉरी. आधी पॉवर 4 काढायला लागेल ना. 1000 डिवाइड बाय 1500 याचा पॉवर 4 काढायला लागेल ना आधी. Yes. 1000 डिवाइड बाय 1500 दॅट इज हे आलंय द होल रेस टू पॉवर 4. ओके आणि ह्याला आता डिवाइड बाय एक मिनटं हा डिवाइड झाला. P1 आहे आपण P1 आहे P2 आहे इज इक्वल टू दिस P2 आपल्याकडे नाही आहे. 200 डिवाइड बाय दिस टर्म येईल वॉट एव्हर दिस इज त्याला 200 डिवाइड बाय हे टर्म करायला लागेल. डिवाइड नाही ना 1000 मल्टिप्लिकेशन येणार बरोबर 1000 येणार तुला 1012 पर्यंत आली असेल ना value? बरोबर 1012 आली व्हॅल्यू करेक्ट. हा, मग मी राऊंड ऑफ करून 1000 करतो. 1000 करूया बरोबर. अरे बट मग हे जर असं आहे स्टीफन बोल्ट्झमॅनचा लॉ मग आपल्याला दिला का नाहीये कुठेच. दॅट्स द कॅच ना. हे गोष्टी ते एक्सपेक्ट करतायत की आपल्याला माहित आहे कारण की ही गोष्ट 11th मध्ये शिकवलेली, ही 12th मध्ये पण नव्हती. 11th फिजिक्स मध्ये होती ही गोष्ट, रेडिएशन आणि हीट मध्ये होती ही गोष्ट. तर ते 11th स्टँडर्डचा बॅक हे गोष्ट आहे ही त्या लेवलची नाहीये जिथे लोक शिकवतायत आपल्याला. ते त्याच्या बेसिक लेवलचं झालं. सो त्यांना असं वाटलं की ब्लॅक बॉडी रिलेटेड मग हे 2 लॉज आहेत ना, मग 2 लॉचे क्वेश्चन पण टाकले. हे तुम्हाला माहित पाहिजे असं. दे आर अज्युमिंग दॅट. येस, दे अज्युम दॅट यू आर 11th ग्रेडर फिजिक्स वाला. अच्छा मग सेम लॉजिक इथे आहे ना. येस, हे 2 क्वेश्चन तुझे बोल्ट्झमॅन लॉ ने यूज होणार. आणि ह्याचं सॉल्व्ह केलं तर 8 येते नॉट 4. हाँ पण मैंने तुला कर लिया. समजलं ना कसं करायचं ते? 80 आ रहा है भाई ना. मैंने कर लिया. क्या मजा आया. मजा आया ना. नहीं मैं तुम लोग को सबको म्यूट ये किया था, क्या मैं था खुद ये से कर वापस रहा था. से रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन. मैंने भी अभी कैलकुलेशन किया बहुत. अगर अनुष्का नहीं बताती तो कुछ नहीं समझता. ओके ये रिपीट क्यों ठीक है. हुआ है. वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, टाइपो है वो. तो ठीक है एक ही क्वेश्चन के लिए 2 बार आंसर मार्क्स मिल जाए चलेगा. अरे आगे तुम लोग पढ़ो ना थोड़ा सा. मैं कुछ और भी कर रहा हूँ साथ में. सो पढ़ो ना थोड़ा सा. एटम इन हॉट emit रेडिएशन दैट हैज लाइन स्पेक्ट्रम अभी तो 31 वाला पढ़ रहे थे ना. स्पेक्ट्रम, इन स्पेक्ट्रम. लाइन Okay. स्पेक्ट्रम, हॉट. वो तो Cold 31 gas सेंटीमीटर. एमिशन स्पेक्ट्रम. एक सवाल है मेरे को. एमिशन. एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब लाइन स्पेक्ट्रम ना. यस. ओके. ये मुझे ना ये तीनों जो है ना मेरे को जल्दी से बता दो वापस एक बार. मेरे को याद नहीं रहेगा, ये पता है मेरे को. सोनम ये कुछ सोहम पता बताएगा. करके सोहम आऊंगी बताएगा मैं. फास्ट. बताओ. सांगा रे तोपर्यंत मी तर 1 मिनिटात आलो. हम्म. सांगायचं. अब्झॉर्प्शन, एमिशन आणि कंटिन्युअस हे तिघं मला एक्सप्लेन कर. मी गडबड करणार आहे अरे, कारण माझ्या लक्षात नॉर्मल व्हाईट लाईट मधून जेव्हा तो डिफ्रॅक्ट करणार लाईटला तर कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम भेटणार तुला, हे तर माहिती आहे. हा तू बोलत राहता हा नाही. आणि हॉट गॅसला पास केले ना तर त्याला फक्त लाईन स्पेक्ट्रम दिसणार. जो एका कलर मधून दुसऱ्या कलर मध्ये जो ट्रान्झिशन होतो ना ते वाले नाही. तुला एक्झॅक्ट वेवलेंथ भेटणार तुला ज्या पर्टिक्युलर कलरची. जशी सोडियमला येल्लोला 6000च्या आसपास येते का 5000 समथिंग, ती एक्झॅक्ट फक्त भेटणार तुला. अच्छा, आपण सोडियम लॅम्प्स जे यूज करतो एक्सपेरिमेंट साठी तसं. हा तसं ओके. एक्झॅक्ट लाईन भेटणार. आणि जेव्हा व्हाईट लाईटला कोल्ड गॅस मधून पास करणार ना तर कोल्ड गॅसचे जे ऍटम्स आहेत ना ते त्या फक्त त्याच लाईन ह्यांना जे एमिशन स्पेक्ट्रम मधल्या ज्या लाईन्स आहेत ना ज्याच्यामुळे ते एक्साइटेड होतात त्याच्यामुळे तिथे कंटिन्युअस नाही येते. तुला जे लाईन स्पेक्ट्रम मधले जे येतात का लाईन्स समजलं. कलर लाईन ते ऍब्झॉर्ब करतात आणि कोल्ड गॅसचे जे ऍटम्स आहेत ना ते हायर स्टेट मध्ये जात आहेत. अच्छा, म्हणजे ते जिथे जे लाईन्स आलेत ना म्हणजे त्या वेव्हलेंथला जी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आहे ती अब्झॉर्ब होते त्या atoms. झाली ऍब्झॉर्ब झाली ऍटम्सने ऍब्झॉर्ब केली कोल्ड गॅसच्या.
ओके, मग तिथे काही दिसत नाही आपल्याला. बाकी सगळीकडे आपल्या नॉर्मल डिफ्रॅक्शन पॅटर्न दिसतो. कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम, हा. सॉरी माय बॅड. कंटिन्युअस हा. स्पेक्ट्रम. हा, कारण की आपण मोनोक्रोमॅटिक लाईट नाही यूज करत आहोत. बरोबर. नाही, हा तेच. इझी आहे मग हे. It उगाच is. घाबरले. मी कन्फ्युज झाले ना ऍक्च्युली म्हणून. Hmm. थँक्यू. According to ए ए ए आई थिंक हम लोग को ना ये जो फॉर्मूलाज वगैरह सब है ना इसमें जो लगेंगे उसका लिस्ट बना के रख दो और रिलेशंस वगैरह बना के रख दो अभी प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज थियोरेटिकल पूछेंगे लेकिन न्यूमेरिकल पूछा तो फॉर्मूला याद नहीं आएगा इसलिए. फॉर्मूला शीट्स मिलने वाला है. न्यूमेरिकल मिलने में भी वाला कौन सा पूछेंगे? पिछले टेस्ट में जैसे हुआ था वैसे कुछ तो अलग से ऐसे होना चाहिए. पार्थ ने भी पूछा था, सो सर ने बोला कि यस, फॉर्मूला शीट्स विल बी गिवन. यश कुठे आहे बाई? तो बोलतच नाही कधीपासून. यशला अपयश आलं असेल कशात तरी, जाऊ दे सोड. हाय 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 हाय. Atom in hot gas emit radiation that has लाइन स्पेक्ट्रम. या बरोबर आहे ना? ए हॉट हो. गॅस ना. हा, लाईन स्पेक्ट्रम बरोबर. एमिशन स्पेक्ट्रम, लाईट स्पेक्ट्रम. भाई आज माझं काय झालंय, मला काय कन्फ्युजन होतं. अकॉर्डिंग टू बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल, इलेक्ट्रॉन इन ॲटम has zero regular momentum. Electron in atom has zero angular momentum in ground state, hence will not radiate. Can have an energy depending on the temperature of the gas, hence provide continuous spectrum. Will not radiate if it has angular momentum which is integer of multiple of h upon 2 pi. Will radiate certain frequency, but different atoms will radiate different frequencies to create continuous spectrum. आई गेस ये होने वाला है. हाँ फोर्थ वाला. इसका ना एक्चुअली मैंने तुक्का मारा था लेकिन बाद में इसको मैंने रीड किया था. इसका एक्चुअल रीजन नहीं रीड किया था, बट लाइक इसका आंसर तो थर्ड ऑप्शन है लेकिन उसका रीजन मेरे को एग्जैक्टली समझा नहीं. बस मैंने ना उसको वो फोटो में भेजा है. मैंने जो पीडीएफ बनाया था देखो, मैंने एक पीडीएफ भेजा था टेक्स्ट का व्हाट्सएप पे. हेलो, येस येस. एक सेकंड थांबा, मी तो पीडीएफ काढते जरा. मी एक पीडीएफ पाठवलेला. शिट. त्या पीडीएफचं नाव काय होतं? रीड. h/2 को h कट बोलते हैं. इसको तो अभी नाम नहीं मालूम मुझे. अरे ते त्यांना कोणी इन्व्हॉल्व नाही करत जास्त. ते आपल्याच ह्याच्यात असतात मध्ये मस्त. अगं मम्मा. ओके, ये देखो जो एंगुलर मोमेंटम है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is given by the formula L equals to NH/2 pi. It means electrons can revolve only in those orbits in which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi, where n is the principal quantum number of the orbit in which the electron is revolving. Okay, उसके बाद का पॉइंट है, electrons in an atom can revolve only in discrete circular orbits called as stationary energy levels, shells. An electron in a shell is characterized by definite energy, angular momentum, and orbit number. While in any of these orbits, an electron does not radiate energy even though it's accelerated. So, will not radiate if it has angular momentum which is an integral multiple of h upon 2 pi, because वहाँ पे stationary orbits होते हैं. ये Oh, I got the explanation right. ये मैंने वो पीपीटी में भेजा था, मैंने मार्क किया, तुक्का लगा, वापस रीड किया. Okay, next. Night vision goggles help to watch human activities in the dark, as they can pick up feeble light and amplify that. No, UV emission from bodies and visible light.
as they can pick up microwave from bodies and visible image. Infrared ना? हा इन्फ्रारेडच घेतात. इंफ्रारेड रहता है राइट. Yes. रेडच असतात ना. हा. Wavelength of near IR rays is of the order of मायक्रोमीटर. near IR. इथे होतं कुठेतरी थांब. मायक्रोमीटर. मायक्रोमीटर आता झालं स्टार्टिंगला. नाही इथे कुठेतरी होतं. लिहून ठेवलेल्या नोट्स मध्ये बघ. लिहून ठेवलेल्या नोट्स मध्ये. लिहून ठेवलं ना वर्ड वर तू लिहिलंयस तर. IR मध्ये नियर आपण वाला near नहीं IR था ना वगैरे नाही उसमें. लिहिलं ना. नियर फार्दर. मायक्रोमीटर क्लिअरली मायक्रोमीटर लिहिलंय. एक सेकंड. मी डायरेक्ट सर्च करतो. सर्च पण होत नाही. Imagine a new minute planet is discovered on 21st March 2026 Near in the IR. constellation of Cancer. Before it, 12 minor bodies have already been discovered in that month. The temporary nomenclature of the newly discovered minor body will be Micrometers ना? 2026. And Micrometers. then since it's like March, so A celestial body shows Okay. a redshift of it's in the 0.001. second The object must be. ये 21st. solve करो. Mhm. ये solve करो. This is radial velocity. जितना मुझे समझ रहा Is it? Celestial body shows a See redshift. this. Okay, so lambda minus lambda naught is 0.01. कुठे गेले? अनिकेत, Yes, yes. ते जे डिफरन्स आहे ना Yes, ते तू मला सांगितलं तेच आहेस का ते? अच्छा this ठीक one, आहे. this one. लॅम्डा बट ये तो दूसरा टॉपिक में है अरे ना, ये एवढं पता नका नहीं करू. तुम्ही फक्त सी ला 0.1 जो दिलाय ना 0.1 हाँ, उससे क्या difference हुआ है, 0.001 ने yes. मल्टिप्लाय करा आणि रेड शिफ्ट म्हणजे तो अवे जातोय आपल्यापासून. एवढं ध्यानात ठेवा. हा तो अवे जातोय बरोबर. Moving मी away. फक्त ना मी तुका फक्त सी ला मारलेला अरे सी ला म्हणजे स्पीड ऑफ लाईट ला मल्टिप्लाय करा. अवे हा 3000 नाही. तू 0.001 ला 3 into 10⁸ ने मल्टिप्लाय कर आणि जे उत्तर येते ते किलोमीटर मध्ये परत कन्वर्ट कर. हा बरोबर 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 मेक सेन्स. इंटू 3 into 10⁸ ला आधी हे करायचं ना. हाँ 3 into 5 आएगा ना 10⁻⁵. 001 ने मल्टिप्लाय कर. 300 किलोमीटर्स पर सेकंड बरोबर. हा बरोबर. बरोबर. आणि अवे रेड शिफ्ट म्हणजे तो अवे जातोय. जर ब्लू Yes, yes, शिफ्ट moving असेल तर away. Yes. हा आपल्याकडे येत असेल. हा बरोबर मुव्हिंग अवे. येस. सेकंड 300 कसं येणार? मला परत एकदा सांग 300 कसं येणार? ह्याला आधी तू स्पीड ऑफ लाईट ने मल्टिप्लाय करायचं. ओके हाँ ये 10⁻³ है. आपका है स्पीड ऑफ लाइट में 10⁸ 8. सो तो 10 to बचेगा 5 बचेगा. 3 हाँ तो बचेगा 10⁻⁵. दैट इज 3 lakhs. Now? सो 3 lakhs मतलब एक मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300 किलोमीटर. ओ किलोमीटर पर सेकंड. सॉरी माय बॅड. मी मीटर पर सेकंड वाचलं. Yes. हम्म. Moving away. Yes. Sohan, it is nice. It was nice. थँक यू. When the spectrum of galaxies is redshifted, it implies emission lines are shifted towards longer wavelength. तो बरोबर आहे. But absorption line do not change wavelength. Okay. All absorption lines are shifted to longer wavelengths by equal wavelength. ठीक आहे. अच्छा डबल टाइप झालाय. ओके. Emission lines are shifted to longer wavelengths and absorption lines are shifted to shorter wavelengths by equal percentage. All absorption and emission lines are shifted towards longer wavelengths by equal percentage. अगर गैलेक्सी का रेड शिफ्ट हो रहा है अगेन हियर सेम थिंग. गैलेक्सी इज गोइंग अवे सो दिस इज एब्सॉर्प्शन लाइन्स. एब्सॉर्प्शन लाइन तो लॉन्गर वेवलेंस में जा ही रहे डेफिनेटली. तो एब्सॉर्प्शन लाइन एंड एमिशन लाइन दोनों भी तो शिफ्ट ही होंगे ना. एमिशन लाइन्स निकालोगे तो भी तो उसके इन्वर्स ही आएगा ना. जेवढे अब्झॉर्प्शन लाईन झाले तेवढेच एमिशन लाईन्स पण हे होणार ना. इन्वर्स मध्ये इमिशन येणार ना. हा सो दोन्ही पण टुवर्ड्स लॉंगर वेवलेंथ शिफ्ट होणार ना. ऑल एमिशन लाइन्स एंड एब्सॉर्प्शन लाइन. एमिशन लाइन्स आर फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए ना. हाँ ऑल एमिशन एंड Yes, एब्सॉर्प्शन yes. लाइन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स लार्जर वेवलेंथ बाय इक्वल परसेंटेज. बरोबर आहे. Yeah. Fraunhofer lines of spectra originate due to
फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होता है? मैं भूल गई, मुझे पता नहीं, सॉरी। कहीं तो होगा, लेट्स चेक। सन का जो लॉजिक, सन का जो सब कुछ था वहाँ पे होगा। वो डिफ्रैक्शन के क्या? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन वगैरह? और डू दे एक सेकंड ते कोरोना वाचलेलं मी आता. पुढे 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 हा, हे बघ. नाही, सॉरी. फ्रॉनहोफर लाईन्स काय असतात पहिले बघूया, बिकॉज वी आर नॉट Fraunhofer डार्क lines are एब्जॉर्प्शन dark लाईन्स. अच्छा, absorption lines in the sun डार्क thinking एब्जॉर्प्शन लाईन्स इन द when सन atoms in the sun's solar atmosphere, chromosphere absorb specific wavelengths of light from the outer interior photosphere. Cool. These lines act as a unique fingerprint for elements. ये होगा ना फिर. Determine chemical composition, which are non-zero stars. कूलर. कूलर गॅसेस इन द सन्स आउटर ॲटमॉस्फिअर, कूलर रिजन्स अबव हॉटर रिजन्स, बरोबर. इमॅजिनस अनुष्का क्या चल रहा है? डीजे बज रहा है. कौन सा मशीन गन चल रहा है. मशीन गन डीजे चल रहा है. नाही, मैं मी तोंडाने आवाज काढत होते. हाँ वो समझा, हम लोग वही पूछ रहे थे. वो एक्साइटेड स्टेट में चली गई और कुछ नहीं. उसका स्पेक्ट्रम निकलेगा. एंट्रोपी बढ़ गया मेरा थोड़ा टाइम. एंट्रोपी अलग आ गया. एंट्रोपी भी हो सकता है. यस. ओके आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बचता है राइट अभी. Sorry. स्टार हैविंग अरे मजा आता है ऐसे करो 100 that of sun and surface temperature at 10 times sun, its total luminosity will be. अब ये क्वेश्चन वो फॉर्म्युला लगा के करो. अगेन वही वाला ना. पण इथे डायमीटर दिलंय, सो बी सतर्क. T⁴ वालाच ना. सतर्क रहो, डायमीटर दिया है. या तोच फॉर्म्युला P इक्वल्स टू सिग्मा A T टू द पावर 4. ए हो, कळणार आहे उद्या. हे ना. मी जाईन उद्या बघा, जर जमलं तर. आई आता माझं डोकं हँग व्हायला लागलंय. आय एम जस्ट गोना गो गुगल इट. नो वन इज वर्किंग. लेट्स नॉट लूज होप. लेट्स सॉल्व इट. भाई और भी 2 क्वेश्चंस हैं. अनिकेत इतनी जल्दी लूज मत कर. ये लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट है ये. अरे और प्रैक्टिस पेपर्स हैं. कौन से किधर? माइनर सब बाकी सबका हुआ है. रोहिणी, सोहन, यश. नाही, माझं फक्त आहे स्पेक्ट्रम वो. आणि ऑप्टिक्स झालंय. मला मायनर बॉडीज करायचंय. ठीक है. माइनर बॉडीज था तो इजी है यार, ये दिमाग खाने वाला टॉपिक है यार. And we have not got sufficient time again. I am not with someone. अरे गेट ओवर इट मैन. गेट ओवर इट. Who are we not happy with? Who are we not happy with? वो दूसरा बंदा जो सैड था वो तो चला ही गया. Who are we not happy with? अरे छोड़ दो आगे की बात. मूव ऑन. लाइफ में इतना टाइम नहीं है सोचने का. हम कितना पसंद आएगा ना. diameter is 1/100 of that of sun. The surface temperature नहीं 10 times नहीं that of तो फॉर्मूला दिखाओ एक बार अनिकेत. पी क्या रहता है? ये मैंने वो सुना नहीं था तुम लोग. luminosity, power, radiation total. तो इसको एल भी ले सकता हूँ ना मैं आराम से. हाँ, दोनों Okay. वर्क्स. ओके ठीक है. टेम्परेचर है हमारे पास. टेम्परेचर आपको ऐसा 1 इनका तो पता 1:10 वैसा करना पड़ेगा. या फिर जो भी. हे बघ ना, T1/T2 तू जर टेम्परेचर
जर पॉवर अँड पॉवरला रेडियस आणि टेम्परेचर दोन्ही डिरेक्टली प्रोपोर्शनल तर रेडियस टेम्परेचरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल होणार. तो R1 अपॉन R2 द होल स्क्वेअर इंटू T2 अपॉन T1 द होल टू द पॉवर 4 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2. आय थिंक सो. प्लीज सॉल्व कर ना, माझं डोकं हँग झालंय खरंच. जस्ट टेल मी द आन्सर I'll try my best. प्लीज. क्वेश्चन दिखाओ ना. या सॉरी. But सुरेंद्र, I need your help. If diameter 1 upon 100 that of sun है, तो दोनों का रेडियस कितना होगा? रिलेशन क्या होगा दोनों के रेडियस का? रेडियाई का, सॉरी माय बैड. वो भी तो 1/100 ही होगा ना. अगं सॉरी 100 ही होगा ना वो भी. हे बघ, डायमीटर 1 अपॉन 100 आहे सनचा, म्हणजे सनचं डायमीटर 100 टाइम्स आहे ना, की सनचं डायमीटर कमी आहे? सनका डायमीटर अगर 100 अपन 100 पकड़ ले तो वो जो नेक्स्ट सन होगा जो उसका 1 है. दूसरा sun उसका 1 है. अच्छा, म्हणजे तो स्टार सनपेक्षा छोटा आहे बेसिकली. 100 टाइम्स छोटा आहे डायमीटर त्याचा. हाँ डायमीटर 100 टाइम्स छोटा आहे म्हणजे रेडियस 50 असणार. ओके, कसं काय रेडियस सनची रेडियस 50 असणार, छोट्या स्टारची 0.5 असणार असं पकड. आई 0.5 चे वगैरे नखरे नको, थांब जरा तू. अरे अरे नखरे काय जे आहे ते. रेडियस पण 100 टाइमच छोटा होणार ना. डायमीटर जर 100 टाइम छोटा झाला, रेडियस पण 100 टाइमच छोटा होणार. अरे पण रेडियस त्याची तर त्याचं 100 टाइम छोटं केलं तर 0.5 येणार ना. अरे पण बाळा एक कशाला मिनिट, कॉम्प्लिकेट करायचे पॉइंट्स मध्ये? डेसिमल्स आर युअर एनिमी, फ्रॅक्शन्स आर युअर फ्रेंड्स. एनिवेज, ऐक ना. P1 मी ना हे सॉल्व करते आणि फोटो पाठवते. बेस्ट. चालेल, पण आन्सर सेम ॲज द सन आहे, हे मात्र बरोबर आहे. पण मी सॉल्व करून पाठवते. पाठव प्लीज. आणि काय आपलं अजून एक चुकलंय. काय? जे हे मायक्रोन रेडिएशनचं होतं ना 1.45 टू 0.97. हा मला वाटलं त्याच्यात कधी गडबड आहे, पण मी चुकलंय. हा जो मी थर्ड वाला आहे ना तोच बरोबर आहे. असं कसं रे? वेवलेंथ वाढणार, टेम्परेचर वाढणार तर वेवलेंथ कमी होणार ना. मी सबमिट केलाय पेपर आणि आता मी स्कोर चेक करतोय म्हणून मी हा जर सांगतो. वेवलेंथ अच्छा ओके. हा मी स्कोरवर मी परत एकदा रिव्ह्यू केला तर माझे ते ओ सॉरी चुकले. गॉट इट. हा? नाही रे. आता मी काही बोलत नाही, तू सबमिट कर आणि मग बघ. आता झालं ना, लास्ट केलं ना सबमिट, लास्टचं कर आता. आणि सबमिट एक सेकंड, मला कळतंय काय होतंय. तू थांब जरा, तू ते माझा इंटरेस्ट वाढत चाललाय आता. इथे माझं डोकं हँग झालंय. D इक्वल्स टू R स्क्वेअर की D इक्वल्स टू 2R? डायमीटर इक्वल टू 2R, 2 रेडियस. मग जर डायमीटर 1/100 ऑफ द सन आहे म्हणजे D1 D2. अरे बाळा ऐक एक मिनिट फक्त ऐक माझं. लेट से सनचं डायमीटर 100 किलोमीटर आहे. ओके, तर त्या स्टारचं 1 किलोमीटर होणार. मग सनचा रेडियस 50 किलोमीटर, तर त्या सनचं रेडियस 0.5 होणार, 0.5 किलोमीटर होणार. सनचं रेडियस 50 धरणार ना तू? बरोबर. कसं? त्याला पण तू 100 ने डिवाइड कर ना 50 ला. जो त्याचा जर रेडियस 50 पकडला तर त्याला पण 100 ने डिवाइड कर. तो पण 100 टाइम स्मॉलरच आहे ना. भाई तुझा बेसिकचा प्रॉब्लेम कसा असू शकतो भाई? तू एवढं बेसिकचं करते. नाही मला कन्फ्युजन होतोय. कॉग्निटिव्ह ओव्हरलोड झालाय सध्या. अरे डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस. हा, हे बरोबर आहे. मग झालं ना, पण जर डायमीटर 1 टाइम छोटा होता तर रेडियस 2 टाइम छोटा होणार ना. झालं मला समजलं काय झालं गडबड ती. टोटल टेम्परेचर इज 10 टाइम्स दॅट ऑफ सन, म्हणजे T2 इज T1. ओके, लेट्स गो. ये 100th ऑफ दॅट ऑफ सन, मग 50 बराबर.
50चा स्क्वेअर हा T1 गेला सेम एज दॅट ऑफ सन येणार. ए radius yes क्या आया सबका आंसर? हेलो. सेम आ Hello. रहा है मेरा. ओके. सेम ही है. मेरा भी सेम आया था बट तुम लोग डैड कुछ काम से आए थे तो मैं हेल्प करने चला गया था. सेम तो नहीं बट ठीक ऑलमोस्ट सेम पे ही आ गया मेरा भी क्योंकि मेरा 10 मतलब और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा था. सेम एज दैट ऑफ द सन आएगा. हाँ उसी में क्लोज आ रहा है. ठीक है कर दो सबमिट. सब कुछ आ रहा है क्या क्या 50 समथिंग बिल्कुल नहीं. मेरा हाफ में 25 सॉरी 1/4 25 माय बैड मेरा 1/4 में आ रहा था तो आई लेफ्ट इट. मतलब ऑप्शन नहीं है तो वो सेम ही कर दो. अरे there's something wrong with this मैंने चैट जीपीटी पूछा है सिंपल. ओके उसने उसने बोला क्या बोला? सिमिलर आ रहा है. ठीक है बट डू रिमेम्बर चैट जीपीटी भी गलत होता है बहुत बार. नहीं उसने फॉर्मूला के साथ ही दिखा है. बता स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के साथ ही देखा है उसने. ओके तो ठीक है आई मीन ये लॉ क्योंकि मैंने है कैलकुलेशन जो उसने हाँ, किया हाँ. ना, वो भी बराबर है. ए पण ऐक ना हाँ मी आता जेव्हा ह्याला टाकलं रेडियसला तेव्हा मी सर सॉल्व करते तर मला 25,000 काय येतंय तू रेडियस का वापरते पण तुला डायमीटर वापर ना. काय प्रॉब्लेम आहे तुला. सॉरी रेडियस वापरायचं तर त्याला हाफच करायला लागणार आहे तुला. अजून काय करणार तू सांग. अनिकेत कर सबमिट. हा करून टाकतो चला. स्कोर बघ आता. अरे लगेच कुठे येतो. आता है रे बाबा. अच्छा लगेच येतो. 14. आपको ये क्लिक करना पड़ता है वहाँ पे बटन. क्या वहाँ जब आप क्लिक करते हो ना सबमिट. चुकलं बघा. अरे रुक जा सोहन एक्सप्लेन दो उसको बोलने दे. जब आप सबमिट करते हो उसके बाद यू गेट द ऑप्शन टू लाइक व्यू आंसर्स. मोर एट 1.45 मायक्रोन देणार लिहा. हेच कसं चुकलं रे. बरोबर बोलला सोहन. मी तेच बोललो. मी स्कोर पहिला मी माझं सबमिट केल्यानंतर मग मी तुला अरे सांगितलं. इथे बरोबर आहे. इथे चुकीचं आहे. असं कसं होऊ शकतं. हे बघ इथे बरोबर हे बरोबर दाखवते. इथे हे चुकीचं दाखवते. ऐसा कैसा चलेगा. रुक जा क्वेश्चन वापस पण पढ़ो. सरांनी कोणता तरी एक गडबड केली असेल. When the temperature of the black हाँ. body is increased from 2000 to 3000. ठीक है. चॅट जीपीटीलाच विचार आता. चॅट जीपीटीलाच विचार When the कोणता temperature बरोबर of the black body is increased from 2000 to 3000. अरे टायपो होऊ शकतं ना. टायपो ह्युमन एरर होऊ शकतो. तो चॅट जीपीटीने थोडी बनवलाय Google. सरांनी बनवलाय. सरांकडून काहीतरी मिस्टेक झाली असेल. सरांकडे हाँ. आपण चेक करून घेऊ. आन्सर फीड करताना चुकून त्यांनी तो आपल्याला वाचताना किती एकाला प्रॉब्लेम एक आन्सर दिला दुसऱ्याला एक आन्सर दिला असं केलं त्यांनी. असं झालं असेल ते सेम आन्सरचे दोन सेम क्वेश्चनचे दोन आन्सर नाही असू शकत ना. इट्स लाइक ये व्यू स्कोर क्लिक करना पड़ता है हर टाइम नहीं आपको. करू शकत अच्छा ठीक ते है. तो इलेक्ट्रॉन्स मेरा मतलब यहाँ पे भी हुआ होगा. व्यू स्कोर आया होगा क्या यहाँ पे भी मेरा. ये वाला मेरे को पता. यू कैन गिव दिस टेस्ट वंस एंड वन एंड बट कैन यू सी द प्रीवियस टेस्ट. प्रीवियस No, आपने जो you एंट्री किया can't. था. कैन यू सी द हाँ, तो प्रीवियस वो- स्कोर. नहीं. हाँ वो फालतू गिरी है. जब आप सबमिट करते हो तभी करना रहता अरे है. भाई साहब ये कैसा लॉजिक है. इट्स लाइक दे कैन गिव दिस टेस्ट मोर देन वन टाइम ना तो हर टाइम ठीक का है तो चलो स्कोर अभी ये दे देते हैं. ये दे देते हैं चलो. कौन सा है? माइनर. अच्छा ये केपलर्स लॉ exoplanets. Which of the following law gives approximate distance of various planets? Titus Bode's law. हाँ बोथ लॉ बरोबर. या यश Asteroids are है ना यहाँ पे. smaller Before bodies है. moving around the sun along हाँ, particular हाँ, paths. सुन रहा हूँ, Smaller सुन bodies रहा हूँ. moving around the Okay, planet नहीं. Celestial bodies having long tail नहीं. Randomly moving objects नहीं. So this is the answer. बट एक सवाल है मेरे को Yeah. पूछो ना. एस्टेरॉइड्स का डेफिनेट ऑर्बिट्स होता है ना एस्ट्रॉइड का यस. क्योंकि ना Asteroids का मेरा क्या? बचपन एक प्रॉपर ऑर्बिट होता है कि नहीं. Yes yes. So this is the रैंडम answer, मोशन है उनके हाँ. Smaller ये मेरा bodies मित- moving around the sun along particular path. बरोबर है आंसर. तो दे डोंट रैंडमली मूव राइट क्योंकि No, बचपन से comets मेरे randomly दिमाग में- move.
कॉमेट्स रैंडमली मूव, इवन Okay. नहीं सी उनका भी पाथ है, But होता है, elongated होता जस्ट है वी बहुत। डोंट नो इट. हाँ, हाँ, वी जस्ट बहुत- डोंट नो इट प्रॉपर्ली. बहुत elongated होता है. Which of the following method measures the wobble of a star due to planet around it? Radial velocity, Astrometry. yeah, astrometry. एस्ट्रोमेट्री है. Astrometry, yes. बट रेडियल नहीं, Radial velocity नहीं. रेडियल वेलोसिटी से क्या पता चलता है? वॉबल ही पता वो चलता गोल है. गोल घूमता है ना, तो शिफ्ट होता है वो वाला. हाँ, अरे एक्चुअली रेडियल वेलोसिटी होना चाहिए. अब भाई कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने? नहीं, एक्चुअली दोनों आंसर बराबर क्यों आ रहे? Should I Google it? ट्रांजिट से क्या पता चलता है? करो Transit से तो डिप नहीं, ब्राइटनेस आंसर पता चलता है. आंसर तो एस्ट्रोमेट्री दिया है उन्होंने. ये चीटिंग करके बता रही है. रेडियल वेलोसिटी. Spectroscopy or Doppler wobble method. Star and its orbiting planet from globe and their common held. What is astrometry method? A precise astronomical technique that measures the tiny positional shift and movement of stars over time to detect invisible celestial bodies, especially exoplanets, by observing a wobble caused by planet. फिर दोनों ही आंसर बराबर है फिर तो. मल्टीपल चॉइस नहीं है. नहीं ना रे बाबा. तो क्या करूँ मैं? एस्ट्रोमेट्री करता हूँ मैं. मोर देन वन. वाजले किती जेवून घे ना. In the earlier phase of exoplanet detection, large number of Jupiter-like planets were discovered. This is because Jupiter-like planets have large amount of hydrogen gas and can easily be detected. Jupiter-like planets are far away from the stars to create sufficient large motion of stars. Jupiter-like planets are more massive and hence can be detected with less sensitive instrument. Jupiter-like planets are always more in number than Earth-like planets, hence easily detected. इसमें मेरे को मल्टीपल लग रहा है यार. नहीं है रे, आंसर एक ही है, सिंपल है. More massive and can be detected with less sensitive things. ये एग्जैक्टली. Which of the following type of asteroids? यहाँ पे मेरे को लगा था कि Generally लाइक have low मैडम, density. हाँ मैडम कुछ और पढ़ा के गई है, सर कुछ और पढ़ के आए हैं. ट्रोजन. क्वेश्चन पेपर ट्रोजन है ना इसका आंसर. उसका आंसर यही सी टाइप है. सी टाइप है. सी इज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इट्स लाइक ये नहीं. इट्स लाइक जेडबलई का एग्जाम भी वैसे ही किया था इन C लोगों ने. type कैसे है? सिखाया था बहुत सारा और पूछा कुछ और ही. सी आपका इज फॉर कार्बनस वाले रहते हैं. टाइप टाइप कैसे रहता है? कार्बोनेशियस, एक एस बार फॉर बताओ ना मेरे. सिलिकस समथिंग ना. हाँ, सिलिकस. एम से मेटालिक होता है. अच्छा ट्रोजन एंड देन अपनी दीस दुनिया आर में द होते हैं. कंपोजिशन एंड ट्रोजन एंड हाँ. और एक है वो लोकेशन से. अरे आ गया वो पार्ट कहाँ गए थे यार. Rings of the giant gas planets lie within हाँ, चिल्ले में. रोज. Roche काय ना limit. रोश, फरेरो रोश. Yeah, तुम लोग Ferrero-Rocher limit. हे त्याने दिलेत नाही कुठल्याही याच्यात त्या पीडीएफ मध्ये. Roche limit. एग्जैक्टली. इसलिए मैंने बोला था कि भाई- लाइक क्वेश्चन बनाने वाला अलग बंदा है. I have त्यांचं रोज लिमिट नाही ते बोर्ड लिमिट असणार, कारण का रोज लिमिटच्या आतमध्ये जर कुठली गोष्ट गेली तर ती तर ती disintegrate डायरेक्ट होते. प्लॅनेटवर हे होते. नाही. जाते. रोच लिमिट नाही, मध्ये नाही, जर नाही. गेली तर ती डिसइंटिग्रेट होते. हाँ, एंड रिंग्स आर काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेटेड, राइट. येस, तो रोच लिमिट ही आंसर होगा. हा तसंच. सर्च कर एकदा सर्च कर. The Roche limit is the distance from a massive celestial body where a smaller object held together by its own gravity will disintegrate due to a larger body's Roche limit, overpowering बरोबर है. tidal force. बरोबर है याचा आंसर भाई. सी But चंद्रशेखर gas लिमिट तो giants- आपका सुनो तो चंद्रशेखर आपका क्या बताता है लिमिट? याद है पार्थ? कोलैप्स जो होगा वो. हाँ, कोलैप्स वाला तो वो हो ही सकता है. लैग्रांजियन लिमिट तो ग्रेविटी वाला रहता है. ग्रेविटी जहाँ वो पे अलग. इवन हाँ. होती है वो पॉइंट्स होते हैं. करेक्ट. बोर्ड्स लिमिट क्या है आपका? वो तो रेडियस वाला है, राइट, डिस्टेंस वाला है. डिस्टेंस ऑफ कहाँ पे प्लैनेट्स हो होगा? जाता है. तो बचा क्या? उसका वही है. ऐसे भी रोच लिमिट. ऐसे नहीं जा रहे तो ऐसे जाओ, ऐसा लाइक. हाँ, और रोच टेढ़े मेढ़े लिमिट. Board limit is a made up term. Board limit is a made हाँ, up बोर्ड term. बोर्ड Confuse करने अगर को. घूम फिर के बोर्ड से क्या आएगा तुमको याद आएगा? बोर्ड्स लॉ. वो Titus बोर्ड्स law. लॉ क्या बता रहा है? हाँ, मतलब बोर्ड्स लॉ प्लान रिंग्स के लिए है ही नहीं ना. और रोच तो लिमिट मैंने वैसे भी पढ़ा है पहले. सो बोर्ड लिमिट का मैंने सोचा कि भाई वो रिंग्स जो है वो प्लैनेट्स के आजू बाजू ही रहते हैं, सो वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसी रेंज में अपन उसको एक रेंज कंसिडर कर सकते कि हाँ बाबा. सो उस काइंड ऑफ इससे मैंने सोचा था कि बोर्ड अच्छा रहेगा. अच्छा.
Okay, next. नहीं 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 Comets are mainly Okay, made next. up of metal core and volatile. रॉकी रॉकी रॉकी, न्यूक्लियस एंड डस्ट एंड मैं आइस। मैंने आउटर वाइल्ड्स खेला तो मैं गर्व से कह सकता हूँ वही है Oh. रॉकी है Which space mission has mainly focused large number of exoplanets? Kepler. Kepler ही है ना? Kepler ही सबसे ज़्यादा दूर. यस यस The main belt of asteroid lie between Mars and Jupiter. Imagine a new minor planet is discovered हाँ ये मस्त है 21st March 2026 in the constellation of Cancer. Before it, 12 minor bodies have already been discovered. 26 Temporary सेकंड। nomenclature of newly discovered minor body will be. So 2026 पहले येणार. A, यस C, D, ई एफ E आएगा. F A. second And F आएगा, second yeah. इसमें ना F आएगा. हाँ तो ऑप्शन बचते हैं सेकंड एंड थर्ड Second, ठीक है yes. और वो उसके सिर्फ 12 बॉडीज है, 12 उसके है ना? पहले ढूंढे E, गए हैं। E, पहले वाले तो था तो B, C, D, आएगा E, F, 13th G, H, जो भी I, लेटर है 13th। L, हम्म M. M आएगा M. F M Yum. 1. M is the 12th. M M is is the 12th. 12th. 12th, तो yes. N is 13th. अरे उसके पहले 12 ढूंढे गए हैं, वो 13 है। हाँ वो 13th है. FN आएगा, yes. हाँ वही। सर FN आएगा, yes. सर तुम पे गूगली खेल गए हाँ भाई. आई Which of डोंट the नो following minor bodies हाउ आई न्यू दिस is the largest in the main belt? Ceres. Ceres Yes. Pluto is no more considered as a planet because it has not cleared its orbit of the other debris. बराबर? यस इसके तो बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए. नहीं. नहीं 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 स्फेरिकल शेप तो है उसका. सन है ओके. भी होता है. नेपच्यून बेल्ट नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर है, दैट इज ओके. बट वो रीजन नहीं है. पर हाँ कुछ टाइम अंदर भी रहता है वो भी है हाँ, करेक्ट. वो बहुत ही अजीब ही है कुछ आइटम. बट हाँ अरे मर्क्यूरी आ गया तो लाइक प्लूटो को गुस्सा गुस्सा आता है ना मेरा प्लैनेट छीन लिया लाइक द टाइटल मर्क्यूरी साले को उसको मिल रहा है हाँ ना. Which of the following Okay. minor bodies is are larger than planet Mercury? मेरे हिसाब से गैनीमेड गैनीमेड. तो है. गाइनेमेड तो आना ही चाहिए इट इज द लार्जेस्ट मून लाइक Yes. कैलिस्टो Moon, right? एंड मून. Moon भी है. नहीं मून नहीं टाइटन दोनों Titan. सी गाइनेमेड इसका है बड़ा जुपिटर का टाइटन सैटर्न का है टाइटन रिमाइंड्स मी ऑफ इन्फिनिटी वॉर. इसके लिए थोड़ा आगे बढ़ो यार उससे आगे बढ़ो देखते हैं ना क्या क्या है. वही प्लेनेट यूज किया है ना, वो वही सैटेलाइट यूज किया है ना उसमें भी, इसमें वो इन्फिनिटी वॉर में। ओ इसका टाइटन घर रहता मतलब है वही थानोस. टाइटन ना। थानोस वहीं से पता आता है नहीं। ना. वो सोल स्टोन मैं वहीं पे मैं इसमें था. गर्व से चिल्ला के बोल सकता हूँ नर्ड अलर्ट इतना पता है इतना नहीं पता होना चाहिए Precise position and shape of asteroids are measured using. Precise position, shape and shape of asteroids are measured using. टेलीस्कोप से हो नहीं सकता है बराबर. स्पेक्ट्रल स्टडी ऑफ पैरेलैक्स मेजरमेंट यूजिंग स्टेलर ऑकल्टेशन. पैरेलैक्स ही बचता है Yes. Transit over. ऑकल्टेशन के टाइम पे हमें पता चलता है ना कि वो कितना. हाँ, ट्रांजिट ओवर द सन तो हो नहीं सकता है. हो ही नहीं सकता है वही तो Right. हमारा ही शैडो ट्रांजिट होगा. पैरेलैक्स ही रहेगा, पैरेलैक्स ही रहेगा। हाँ ना वो अपने को देखेगा, हम नहीं उसको देख पाएंगे ट्रांजिट में. Which of the following is correct statement about comets? अच्छा. All comets have aphelion beyond Neptune's orbit. Comets form tail only when it comes sufficiently close to sun. यही बराबर लग रहा है मुझे. यस Comets have nuclei made up of heavy metals. Comets do not move in elliptic. यही बराबर है. यस सबमिट Should I submit? पहला वाला नहीं है, लॉक कर दिया जाए नहीं. क्या बोल रहे हो पार्थ पहला वाला एपिलियन बियॉन्ड न्यूटन ऑर्बिट। नहीं एफिलियन और आपका वो रहता है ना 2 पॉइंट रहते हैं राइट Aphelion पेरिलियन नहीं कौन सा Aphelion पेरिलियन है इज द ना. क्लोजेस्ट पॉइंट और एपिलियन इज द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस टोटल। तेरा एलिप्टिकल रहता है ना, तो जो फारदेस्ट 2 पॉइंट सही है तो पहला भी सही है ना कि उसका एपिलियन बाहर ही रहेगा ना। बट ऑल कॉमेट्स हाँ तो ऑल कॉमेट्स ही है ना। आई डोंट थिंक एनी कॉमेट है जो अपने खुद के सोलर सिस्टम से हाँ रे. लेट्स थिंक अबाउट इट हाँ वही मैं भी इसका थोड़ा सोच रहा हूँ कि लाइक ऑल कॉमेट्स मुझे सेकंड ऑप्शन इतना एक्यूरेट क्यों लग रहा है अंदर से.
नहीं रे, दोनों करेक्ट हो बराबर सकते है। हैं। तो पहला और दोनों correct हो दूसरा सकते दोनों हैं। करेक्ट है। पार्थ का पॉइंट बराबर है। ठीक है, सब करके देखते हैं ना क्या आंसर आ रहा है। सबमिट। मेरे को ना अपोजी पेरिजी एपिलिन पेरिलिन याद रखने का तरीका याद आ गया। क्या ए अवे, नहीं, पी पास। अच्छा ठीक है उसका है, अनिकेत मत बताओ, लाइक यस दैट इज अगर उसको आ गया तो ठीक है। टाइटस वुड्स लॉ करा, बराबर आया है। एस्ट्रॉइड्स का ये आंसर है। क्या स्कोर आया मेरा? ये 15 50 डन, बराबर आया सब कुछ। 5 स्टार खा लो। और ये सी टाइप और वो सब कहाँ पे कॉन्सेप्ट पीपीटी में था? वो नहीं था, इट्स एन अज्यूम्ड थिंग कि हमें आता पढ़ाया है। गया है। दे अज्यूम दैट हमें यू नो आता दिस, है। यस, नॉट नो इट्स दिस लाइक अ और यू बेसिक माइट थिंग। वेर यू टॉट शुड नो दिस दिस वैसा। और यू मे नो दिस। और मे बी हैव एक्स्ट्रा रेड इट समवेयर। सर ने क्लास में बताया था। मैडम ने पढ़ाया ना टॉपिक। और एक ट्रोजन बाकी के था बारे ना, में तो पढ़ा था थोड़ा सा, वो सर ने डिस्कस करना है ट्रोजन ने वो ट्रोजन। ट्रोजन बताया था, बट नहीं टाइप ऑप्टिक्स सी के का। ऊपर भी देते हैं ना, चलो दे दे। सर ना फिर वो लास्ट इसका ऑप्शन ए का क्या रहेगा फिर, जो सही कौन आया सा तो लास्ट? जो इसको सही एफिलियन आया वाला ना, एफिलियन वाला ना है। एपिलियन अच्छा वाला। नहीं सुनो पार्थ, वो जो बोल रहे थे ना ऑल कॉमेट्स में, मेरे को एक एग्जांपल मिल गया। कॉमेट 67P, वो जुपिटर के वहाँ पे उसका एफिलियन है। जुपिटर के एंड जुपिटर के बाद क्या आता है? नेपट्यून, राइट? जुपिटर के बाद सैटर्न। पैटर्न। सैटर्न सैटर्न हाँ, जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में उसका एफिलियन, एफिल जो भी वर्ड है क्या यार, बात एफिलियन, सॉरी। हाँ हाँ एफिलियन, ओके। वो एफिलिएट चाह रहा था मैं, इसलिए मेरा माउंट, हाँ इसलिए मैं बोला नहीं। चलो ये भी दे देते, मैं देन वील एंड। रुक जा, आई विल जस्ट शेयर द इमेज ऑन द ग्रुप, ठीक है? सो यू कैन सी इट आल्सो। हाँ अरे इधर ही शेयर कर दो ना चैट में। अरे ग्रुप में सबको मिल जाएगा, सबको कंफ्यूज होना चाहिए, ये लोग देख क्या रहे थे। अच्छा हाँ, आप इमेज है यहाँ पे ना? देख लो। हाँ हाँ, ये इमेज एक्सेप्ट ऑल कुकीज ESA की साइट है। ए मुझे वापस एक बार जरा, काइपर बेल्ट लाइज बियॉन्ड नेपच्यून, यस और जो यस एस्ट्रॉइड बेल्ट इट लाइज बिटवीन जुपिटर एंड मार्स, राइट? यस, मेन एस्ट्रॉइड हाँ, बेल्ट। एंड देन ऊट्स क्लाउड्स वगैरह और वो सब बाहर आ जाते ऊट्स हैं। लिटरली एंड में है, लाइक ऊर्ट जहाँ क्लाउड पे है ना, अर्थ हीलियोपोस के सन का। बाहर है। वो है क्या? बट लाइक इज इट सम इंटरस्टेलर क्लाउड कि डस्ट क्लाउड है? डस्ट है, ऑल क्लाउड द है छोटा मोटा, और कुछ नहीं है वो। वी डोंट, नोबडी हैज सीन इट, इट इज जस्ट अजम्पशन कि वो वैसा रहेगा। क्लाउडी, ओके, क्लाउडी। हम्म सी दिस इज इट। हाइपोथेटिकल। हाँ, ये फर्स्ट इमेज, यही बोलता, क्लिक करो ना, यू कैन जूम, लाइक मैग्नीफाई हो जाएगा वो। हाँ, अब इसको यहाँ पे जूम कर लो। सी इसका अपीजी आपका जुपिटर के जस्ट और सैटर्न के यहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट? यस। एंड इसके लिए 6.5 इयर्स है, लाइक हाँ पीरियड। सन से एपोजी इधर है उसका। दिस इज पेरिजी। हाँ तो बस ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ऑल बोल देते हैं ना, तो फिर लाइक नहीं नहीं, कुछ ना कोई तो रहेगा बंदा जो कांड करेगा। चलो ये आंसर भी कर लेते हैं, देन वील फिनिश ऑफ। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20/60 बाइनोकुलर? 20 आईपीस अपर्चर होगा, सॉरी 20 मैग्निफिकेशन होगा। 20 टाइम्स 20 मैग्नीफाई मैग्निफिकेशन होगा है। और 60 mm यस का यस ऑब्जेक्ट यस को। यस यस। बट 20 टाइम्स मैग्नीफाइड किसके लिए, एज इन आपका बेस क्या है? 60 मिलीमीटर ऑब्जेक्टिव अपर्चर, ऑब्जेक्टिव। नहीं, यस 20 टाइम वो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होगा। हाँ बट ऑब्जेक्ट अगर ये आपका 20 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है तो 1x पे आप क्या देख रहे थे? 1x क्या क्या यूज कर रहे थे आप? क्या देख रहे थे? नॉर्मल आइज, आइज, आईज आइज है वो। आईज। हाँ, अच्छा, हाँ ये वैसा। याद रखना। हाँ तो ये हाँ आंसर बराबर है ना। हाँ हाँ, करेक्ट। A telescope has aperture of 240 mm and focal length of 1200 mm. It is used with eyepiece 12 mm. The magnification and f ratio are respectively. Magnification तो 100 आ जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन 1 एंड 3। हाँ तो क्या अभी एफ रेशियो कैसे निकालते हैं? मैग्निफिकेशन तो 100 आ जाएगा, यस। एफ रेशियो कैसे निकालते हैं मुझे पता है, इनको भी पता है, सुरेंद्र को भी पता है। F ratio is aperture divided by focal length divided by aperture. यस यस, सिंपल। सो दिस इज द आंसर। Aperture of the objective, by the way. आई वो भूल Eyepiece. जाती हूँ मैं। आईपीस है क्या? ओके हाँ, सॉरी, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को लोग उसको बोलते हैं, प्राइमरी को भी तो है या हाँ या हाँ, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। I revoked the fifth, sorry. Yeah, wavelength of microwave is in the order of
सेंटीमीटर ना सेंटी या सेंटीमीटर। ये यहाँ पे क्यों आ गया? ये सॉरी हर जगह मीटर आ होगा ना जाता है। माइक्रोवेव। जा रहे अनिकेत, तो वापस पीछे जा, इसको पीछे मारो जा। भाई, हाँ कंफ्यूज कर रहा है, इसको मारो। सेंटीमीटर सॉरी। वेवलेंथ ऑफ नियर IR इज इन ऑर्डर माइक्रोमीटर। अभी जस्ट खेल माइक्रो रहा क्वेश्चन था। अभी दिया ना अनिकेत, अभी दिया। उसका ब्रेन फ्रीज हो गया है, समझो यार। Cognitive overload, specified as cognitive 7 into overload. 50, which is one statement is wrong about it. अच्छा, it will collect effectively 350 times more light than naked eye. यही wrong लग रहा है मुझे तो। It can magnify moon up to 200 arc minute size. It has aperture of 50 mm, ये तो बराबर है। Exit beauty of 7 mm, मेरे हिसाब से यही गलत लग रहा है। यही लग रहा है बहुत गलत। यही है। नेक्स्ट, Newtonian telescopes use concave mirror as objective, यहाँ तक बराबर है। तो 1 and 3rd, Lens for 1 and eyepiece 3rd बचते हैं। आड़ू क्या आड़ू हुआ ये, क्या हुआ? अच्छा मिरर तो आईपीस के लिए होता नहीं है, राइट? तो ये करेक्ट, वही बचता है। हाँ, दिस इज इट। मैंने वो मिरर सोचिए वो टिक किया था अच्छा एक बार। लार्ज अपर्चर इज प्रेफर्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बिकॉज इट मोर देन वन कैन बी करेक्ट। अच्छा, लार्ज अपर्चर collects more light, increases the resolution. इंक्रीजेस रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन भी तो इंक्रीज होगा। मैग्निफिकेशन का उससे नहीं है ना रिलेशन, आईपीस से रिलेशन है क्यों उसका। नहीं आईपीस होगा? से आता है ना मतलब अगर जितना बड़ा लार्ज। लार्ज हाँ, मिरर हाँ। होगा उतना तो उसको मैग्निफिकेशन करने के लिए आसान होगा ना, बिकॉज बट विल द अपर्चर इंक्रीज द मैग्निफिकेशन? नहीं ना, उसके लिए आईपीस डायरेक्टली नहीं करेगा। इनडायरेक्ट। हाँ, तो डायरेक्टली नहीं कर रहा है ना, अपर्चर वही से चाहिए। ब्राइटनेस बढ़ेगा, ज्यादा अपर्चर तो ज्यादा लाइट आएगी तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, यस, बट करेक्ट, इनडायरेक्टली नहीं। मैग्निफिकेशन हाँ, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना तो आईपीस का काम है। यस। Cassegrain telescope has advantage of more than one, right? Small tube length, लार्ज फोकल रेशियो। large f ratio है। पार्थ आपको जम रहा है राइट कि हम लोग फास्ट नहीं जा रहे ना? पार्थ यस मैंने बोलो। ऑप्टिक्स किया नहीं अब तक, Part तो मैं left, I just अच्छा, guess. किया ही नहीं सुन क्या? रहा हूँ। है मैं पार्थ सुन है। रहा हूँ, जब Small सुन रहा हूँ, मैं aberration देख रहा हूँ। आहे and more light collection। More light collection तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं मोर कैसे करेगा? नहीं होगा। मेरा साइज ही छोटा है। Small aberration भी नहीं है। और is it Cassegrain में है क्या? कैसेग्रेन छोटे नहीं वाले होता, रहते हैं राइट? कैसीग्रेन रेट इज कैन दी नॉट लाइक कॉम्पैक्ट। एक मिनट, उस पे करेक्टर प्लेट रहता है ना सुरेंद्र? हाँ, सो एबरेशन कम करने के लिए ही तो होता है ना करेक्टर प्लेट। हैज एडवांटेज इज एट द सेंटर, राइट? एंट्री ऑफ द मतलब एंट्री ऑफ द टेलीस्कोप जो है आगे फ्रंट ऑफ द सेंटर में ही करेक्टर प्लेट होता है, राइट? कैसेग्रेन में रहता है कि वो स्मिथ कैसेग्रेन किसकी बात कर रहे हैं वाला है वो? अरे हाँ, वो भी है ना, उसमें टाइप्स है यार, मैक्सोटो ये वो पता नहीं क्या। ठीक है, ये दो ही रखते हैं। Aberration means colored images for white object. ये तो पता रहेगा एटलीस्ट सबको। Diffuse Right. image of इसका एक ही ऑप्शन है। ये दो मल्टीपल है। मल्टीपल है। नहीं, इसका आंसर एक ही है This is लेकिन it and this is it. कलर्ड इमेजेस। डिफ्यूज्ड इमेजेस का नहीं आता, वो कोमा का इशू है ना, आई गेस। नहीं, वो नहीं। Boundary of field of view तो definitely aberration ही है ना। Aberration तो corners में ही आते हैं ना, साइड में ही। यस साइड्स में आते हैं, बाउंड्री हाँ। ब्लर हो जाती है, मतलब वो Uneven कलर्स। magnification का तो कोई बराबर है। सवाल नहीं आता है। अनिकेत बराबर है तेरा। हाँ, uneven magnification का कोई सवाल नहीं है। Tail like appearance का भी कोई सवाल नहीं है, तो ये दोनों बराबर है। स्फेरिकल एबरेशन है ना डिफ्यूज्ड इमेजेस। Spherical aberration स्फेरिकल आपका अलग रहता है, क्योंकि आपका लेंस ही आपको फोकस नहीं कर पा रहा है, वैसा हो जाता है। chromatic aberration means what? जे आपल्याला रेडिश अँड ब्लूइश दिसतं ना, that is chromatic aberration. त्याचा डिफ्यूज्ड इमेजेसशी काय संबंध आहे? डिफ्यूज इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ॲट बाउंड्री ऑफ द फील्ड ऑफ व्ह्यू, म्हणजे जेव्हा तू बघणार ना एखादा ऑब्जेक्ट, तेव्हा त्याचा जो फील्ड ऑफ व्ह्यू आहे आयपीसचा, त्याच्या बाउंड्रीला म्हणजे आउटर साईड्सला तुला ते असं कलरिंग दिसणार ना. बट डिफ्यूज्ड आहे ना, कलर्ड थोडी दिले त्याने। डिफ्यूज्ड म्हणजे असं फुसफुशीत असं सॉरी Yes, असं फुसफुसी अस्पष्ट आएगा। असं। होतं तसं, सी होतं तसं. आपको आप जब देखते हो आपका आरजीबी रहता है राइट, मतलब एक मिनट. व्हेन वी सी द फाइनल इमेज, तो वो इमेज आपकी मतलब रेड की इमेज थोड़ी लेफ्ट साइड हो जाएगी, राइट जी ग्रीन वाला राइट हो जाएगा, ऐसा ना अरे सेपरेट तो आएगा। स्केल देख ना अपना, स्केल। हाँ, स्केल वाला वो भी चलेगा। हाँ, उसमें रखेगी ये देख ना ऐसा। बचपन में करते थे ना, Plastic स्केल scale आईज के मध्ये सामने करतो हे है। देख ऐसा कुछ. See this. हाँ, येस, प्लास्टिक स्केल मध्ये होतं हे।
अभी हाँ, plastic क्या scale चीप में ऑप्शन है हम लोग के पास सही है ये सब प्लास्टिक कुछ स्केल है। भी होगा ना, मेटल स्केल में क्या दिखने वाला है तुझे? Okay, should we नहीं, कुछ submit? लोग Last one is हाँ remaining. 4-inch aperture telescope has aperture of. इंच टू सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी करते हैं करो. ये मुझे समझा नहीं. 4-inch aperture telescope has an aperture of. म्हणजे अरे अरे त्याला युनिट चेंज कर. मिलीमीटर करायचंय फक्त. इंच टू मिलीमीटर करायचं. That's it. अरे अपने सेंटीमीटर पास that is आई एम 100 टेलिंग millimeter. यू शेट्टी सर रन आउट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे. ठीक Yes, है yes. कुछ भी डाल दिया. ये कुछ भी हाँ मतलब कन्वर्ट करके सिर्फ मिलीमीटर में करना है यही. इंच का मिलीमीटर Yes. करना है. That's it. यस दैट्स हाँ. इट. अच्छा, I thought 4 inches का ये है ट्यूब लेंथ है. चलो मैं सबमिट कर रहा हूँ और चेक करते हैं रिजल्ट्स क्या है. हाँ हाँ करो करो. 9 आउट ऑफ 10. 9. कौन सा गलत हुआ? 9 आउट ऑफ 10. वही वाला डिफ्यूजन क्रोमैटिक वाला. नहीं रे क्रोमैटिक का नहीं रहेगा. नहीं नहीं लेट्स सी. हाँ, वही है. वही है. अरे ठीक है ना. अनुष्का ने बराबर से बोला फिर. यस यस. क्योंकि व्हेन यू थिंक अबाउट इट वो दोनों ऑप्शन एक ही चीज बता रहे हैं सॉर्ट आउट. राइट फील्ड व्यू में वैसा आ रहा है. ठीक है और कुछ करना है और कोई. क्या बाकी है क्या कुछ? अभी तीनों हो गया ना. हो गया हाँ. दोनों हो गए. तुम लोगों ने ऑप्टिक्स किया है? यस ऑप्टिक्स का मतलब अनुष्का ने नोट्स basically- देखे. अनुष्का Notes, के हाँ. नोट्स देखे हमने रिवाइज किया है इसका. एक मिनट इसको मैं सेव एज कर देता हूँ एंड वापस से इसको ये अपडेटेड नाम लिखो. एक मिनट Okay. अभी ये क्या है ये लिखते हैं ना. हाँ ये Humans. नहीं चलेगा. क्या ह्यूमंस. क्या है स्टीव? My dear humans, Boltzmann law. BOLT बोल्ट्समैन. हाँ Z. Bolts, Usain Bolts. NN. Anyways, ऐकताय काय? हाँ बोल ना. या बोलो बोल बोलो. बोल. ये रीड करते हैं. The primary okay, in a spherical mirror, reflected rays meet at slightly different points instead of the focal point. This makes the image fuzzy. Such a defect is called spherical aberration. To remove this flaw, a parabolic mirror is used. Even a parabolic mirror has a defect. An image through such mirror shown on the shows stars on the edge of the field having small tails. This defect is called a coma. ओके एवढंच होतं. ओके. हेच म्हणते. आता क्या समजलं मी बताया था का आपने से. अच्छा सो सर Basically, that is the coma. reason Okay. why my answer was that. Why diffuse objects is not chromatic aberration, it's spherical aberration. It's Got this. it. Yes. हाँ वो पहले बताओ ना किस लिए रीड कर रहे हो. मैं मतलब ठीक है बट आगे क्या रिलेट किसे करना है इस चीज जो को. जो I'm wrong sorry. relate कर रहा था. I'm sorry for the lack of context. I apologize. हाँ ठीक है चलेगा चलो नो इशू चलो यार. मैं ये वाला वापस से शेयर कर देता हूँ. ठीक है. ते वर्ड डॉक्युमेंट शेअर कर पहिले आधी ते का? वेवलाईनचं. ते वर्ड डॉक्युमेंट तू टाइप केलंस ना ते शेअर कर पहिले. हाँ वो कर रहा है अरे वही कर रहा दोन्ही है. शेअर करून देतो ना का पीडीएफ तेच आहे का? अच्छा ओके. हेच शेअर करतोय मी. पीडीएफ शेअर करतो ना. वर्ड डॉक्युमेंट शेअर करून काय उपयोग आहे? मग कांदा भजी आहे ना. हैं हम लोग सबको जला रही सीधा हो. कांदा भजी. अरे आई एम ईटिंग फूड. मेरे को लैपटॉप को हाथ नहीं लगाना वरना तेल कट हो जाएगा. तेल आ कल जाएगा ना मैं- उसमें भी कॉमेट तेल. ये कौन सा लैंग्वेज है वरना तेल कट हो जाएगा. टिपिकल मराठी. मराठीच आहे मी मराठीतच बोलणार. तू पण मला मुंबई हिंदी. बट ऑनेस्टली जब तुम लोग डिस्कस कर रहे थे ना क्वेश्चन मुझे हंसी आ रही थी. पता नहीं क्यों. कौन सा? वो मराठी में कौन सा कॉन्वर्सेशन question? हंसी आती है. लाइक हिरियो यू पीपल आर मराठी राइट. तो तुम्हारे लिए हाँ, नॉर्मल है. मैं नॉन मराठी बनता हूँ मुझे हंसी आ रही है. लाइक ये कॉमेडी शो चल रहा है. हाँ मतलब बेसिकली हमारे बात करने के स्टाइल पे वगैरह ऐसा. हाँ कॉमेडी exactly. नाइट्स विद कुरिल. चलेगा. तो इसका कुरिल है इसलिए कुरिल. गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट. ओके अंकित सुरेंद्र बेस्ट ऑफ लक. बोलो ना. लो कल सुबह मेरे लिए मिलते हैं. स्टिक बचा के रखो एक. क्या? लास्ट एक मिनट, टाइम क्या बोल अरे रहे हो? सीट वापस? लास्ट एक बोलो, रुको, सोहन, रुको। पूरा हॉल खाली होगा. सुनो tension मत ले. पार्थ को हाँ। बोलने दो. हाँ बोलो. मैं बोल रहा था कि लास्ट टाइम की तरह मत करो, इस बार सीट बचा के रखो मेरे लिए एक.
अच्छा सीट बचा अरे के एक कौन लाइन सा? में ऐसे भी 3 ही लोग बैठते हैं, क्या सीट बचाएंगे? हाँ वो सर ने खुद बोला था शिफ्ट हो जा वैसा। अरे गाइस एक मिनट, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज ये चीज़ों का ज़रूरत नहीं है।